And in the other, the second section, we'll do paper 2, and then at the end, we'll do paper 4. So we begin with those topics which are common, which are common issues for both AS and A-level students. So there are total 150 slides. What I would suggest to everyone, that since it will be very difficult to retain everything I tell you in this session, you need to review it. So in order to get a quick revision, you need to note down the slide numbers which you think are relevant, so that you can actually move back and go and look at those slides once again. So I will advise you to note down the slide numbers which you think are relevant for you, so that you can यार ये नहीं चल रहा इसका जी. So this is my brief introduction. I have written 4 books on economics, and these are the names of those 4 books which are written, and you can have a look at that at your own time. So I only teach at my own school, and this school is established. It was established in 1993, and we have been offering O and A-level education. It is one of the oldest institutions, and I also teach business studies occasionally. I have been teaching business studies regularly for many years, but now I teach it occasionally only. So this is our school address. This is our social media addresses. So we are on slide number 7. So I will like to follow my timing, 150 slides total. So in today's presentation, we'll discuss what are the types of exam papers, what are the assessment objectives, what are the command words, what are the do's and don'ts for writing essays, and what examiners look for, sample of marked essays, and tips for data response questions. So A-level economics is a 2-year course, and it can be taken in 2 parts. One is AS, and the other is A2. There is no A2. It is called A-level. So A-level is synonym of A2. Usually we call it A2, but it is actually A-level. There is no A2. There is no A2 certification. So AS examination, there are 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 has 30 multiple choice questions, and it is of 1 hour duration. Paper 2 has 1 compulsory data response question and 3 essays, out of which students are expected to attempt 1 question. Duration of paper 2 is 90 minutes. G. So slide number 10, A2 economics, please switch off your phones. Please kindly do this favor, switch off your phones. And I should do that as well. I am asking you, and I have not switched off my phone. G. So A2 economics has 2 exam papers, paper 3 and paper 4. Paper 3, 30 multiple choice questions, and duration is 78 minutes. So duration of paper 3 is more than duration of paper 1, even though both have 30 multiple choice questions each, but paper 3 is a lot more complicated and challenging, and that is why Cambridge has allocated 1 hour and 15 minutes instead of just 1 hour. Paper 4, 1 data response question and 2 essays out of a choice of 6. Along with low-level skills such as knowledge understanding, aerodynamics course also examines higher level skills such as analysis and evaluation. So if you look at this chart, page number 12, can you do this favor and switch off your phone? G. So remembering, understanding are low-level skills, whereas evaluation and creation is the high-level skills. So A-level economics papers do check understanding and knowledge, as well as they do check higher-level skills such as evaluation. So A-level economics paper or A-level economics course has 4 assessment objectives. One is AO1, that is understanding and knowledge. AO2 is application. AO3 is analysis. AO4 is evaluation. So I have prepared a skill exercise. That skill exercise is available
on Cambridge Sport website. We'll be giving you a hard copy of that as well at the end of today's presentation. And that consists of exercises which can help you to differentiate between these different assessment objectives. Slide number 15, paper 4 and paper 3, multiple choice questions usually test lower level skills. Rarely they check higher level skills, whereas data response questions are progressive in nature. The earlier questions, the top questions, part A, part B, they do check knowledge understanding, whereas the later parts, they do check more high level skills like evaluation and analysis. Part A of essays of paper 2 usually check knowledge understanding. Part B of essays of paper 2 usually check analysis and evaluation. Essays of paper 4 mostly check higher level order skills, that is analysis and evaluation. Each question has a command word which relates to a specific assessment objective. Command words are common command words: identify, state, calculate, define, compare. These are the command words which are used in data response questions. Command words explain, they are used in the essay papers. Command words of analyze and discuss, they are also used for essay papers. So explain का जो word होगा, that is testing knowledge understanding application, और जब discuss का question होगा, ये test कर रहा है analysis और evaluation. From March 23 onwards, next year onwards, there are significant changes in the syllabus. There is a revised pattern of paper 2 and paper 4, and assessment objectives are reduced from 4 to only 3. The objective AO of application will no longer be there, and there will be only 3 assessment objectives from March 23 onwards. That is knowledge understanding, analysis, and evaluation. So there will be only 3 assessment objectives, but at this moment, for this exam paper, there are 4 AO1 assessment objectives. Things you should avoid doing while you are writing an essay. These are the tips which you should avoid doing. Slide number 18. We have to rush up things. And what I am suggesting again, that kindly take down, note down the numbers of slides which you think are relevant, so that you can refer back and you can look at them at your own convenience and at your own pace. Instead of going through the entire presentation of 2 hours again, you can only look at those slides which you think are relevant for you. So things you should avoid doing while you write an essay. Write what you can, but you are not what you are. You should not do these things. Do not write what you are capable of writing. Do not write what you know. Write what you are asked to write. Do understand the requirements of the question. If the question asks usefulness of PED for pricing decisions, so change your answer and write what is the usefulness of PED for pricing decision, and do not tell what is the formula of PED. Do not tell what are the types of PED. Do not tell what makes price relaxation high or low. The answer of the question will begin when you start talking about pricing decisions and the impact of PED on those pricing decisions. So write what you can. No, it's not correct. Write what you should. There's a difference between what you are capable of writing and what you are supposed to write. Then do not preempt the question. Price of मान का question जब पढ़ें तो ऐसा ना लगे कि वो 4 definition देनी है, 3 definition देनी है, 3 type बतानी है, flatter curve और steeper curve बनाना है. No. Look at the question carefully. Do not preempt the question. अपने word ना डाल दें question के अंदर. Do not alter the question. Alter your answer. अपने question को modify नहीं करना. अपनी मर्जी का question नहीं बना लेना. Answer modify करना. और इसकी एग्जांपल्स को थोड़ी देते हैं आपको जी. डू नॉट ओवरस्पेंड टाइम ऑन ए क्वेश्चन. देखिए पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं. पेपर 4 इज लॉट मोर डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम. पेपर 2 की बात कर रहा हूं. टोटल ड्यूरेशन 1.5 hours, 45 minutes फॉर डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 45 minutes फॉर ऐसे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है डाटा रिस्पॉन्स का. 5 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने के लिए, 40 मिनट रह गए. तो 2 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने. 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने. तो यू हैव टू हैव द आइडिया. 8 नंबर का क्वेश्चन है. टोटल नंबर कितने हैं पेपर में? 40 मार्क्स का पेपर है.
40 मार्क्स का पेपर है, 75 मिनट ड्यूरेशन है। 5 मिनट ज़ाया कर दें, पेपर को मिला आपको देखते हुए समझते हुए 15 मिनट लगा दें कि पेपर को आपने प्लान किया, पेपर को पढ़ाई की, उसने क्वेश्चन चूज किया अपनी मर्जी का, बाकी रह गए 60 मिनट। तो 1.5 मिनट पर मार्क, 1.5 मिनट पर मार्क इज जनरल रूल। 8 मार्क्स का पार्ट ए है, 12 मिनट लगाने, ज्यादा नहीं देने। 12 नंबर का पार्ट बी है, 18 मिनट से ज्यादा नहीं देने। 2 नंबर का पार्ट ए है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं देने। So do not overspend time on a part of it. To get a good grade, the first step is kindly attempt the complete paper. Attempt the complete paper. Do not compromise on that. Practice it. Diminishing returns का law है, A2 में पढ़ते हैं आप. Chances of getting marks from the first paragraph of the first question of the next question are higher than the chances of writing or getting marks from the 4th or 5th paragraph of the current question. तो 5वां 6वां पैराग्राफ लिखने की बजाय मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका पेपर 4 है, पेपर 4 के अंदर 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर 50 मिनट ड्यूरेशन है, लंबे लंबे ऐसे हैं, 15 डायग्राम एक क्वेश्चन में बनाने पड़ सकते हैं आपको। 15,000 थोड़ा ज्यादा कहेगा, एग्जीरेट कर दिया, थोड़ी आदत की पीछे 5-6 डायग्राम एक क्वेश्चन बनाने पड़ सकते हैं आपको। इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी। पेपर 4 जो दो देना चाह रहे हैं, अगर उनको पेपर आता है, बहुत सी तैयारी है पेपर 4 की, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फर्क डालने जा रही है। पेपर कंप्लीट नहीं होता, अक्सर बच्चे भी जाके बताते हैं कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। डू नॉट राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट अ कॉन्सेप्ट, ओनली राइट द रेलेवेंट स्टफ। क्यों? एग्जामिनर बड़ी स्पीड से पेपर चेक करते हैं, बहुत क्वांटिटी होती है पेपर चेक करने की। आपने इरेलेवेंट लिखा, 3 पैराग्राफ रेलेवेंट नहीं लिखे, 4था पैराग्राफ रेलेवेंट लिखा, बाय द टाइम एग्जामिनर मूव टू द 4th पैराग्राफ he lost his focus and you lost marks. Examiner losing marks, examiner losing focus equals you losing chance of getting admission in your dream university. Do not let your examiner lose focus. And how does the examiner lose focus? Poor handwriting, lot of cutting, lot of irrelevant stuff. Avoid doing all that. Please keep your examiner engaged, so that whatever you have written is given due credit and you reach the destination you've always thought about reaching. 1 mark difference can convert your A grade into a B grade and can convert your conditional admission offer into a decline, into a refusal. Do not play with your future by overcutting, by poor handwriting, and by writing irrelevant stuff. Draw a diagram unless you are centered about 2 things. It is relevant and it is accurate. You know that. Unless you are sure about the accuracy, diagram को कैसे करना है इसके बारे में पूरी मेरा presentation का हिस्सा होगा कि what you need to avoid in the diagram. 50%, more than 50% students, in my experience, they make mistakes in the diagram. They lose marks because they carelessly draw diagrams. They do not give importance to the areas or to the diagram, the importance which they should be giving. डायग्राम बनाते हैं पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। डू नॉट गिव नंबर्स, राइट x1, x2, y1, y2 इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स, बिकॉज व्हेन यू गिव नंबर्स आपका स्केल आउट हो जाता है। आप 10 का डिफरेंस ना देते हैं और आगे 20 लिख देते हैं, 10 और 20 बिल्कुल पास होते हैं, 0-10 में कुछ गैप होता है। डू नॉट गिव नंबर्स, राइट क्वांटिटीज x1, x2, y1, y2। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग नंबर्स, यूज other symbols to show 2 different levels of quantities. And do not forget to properly label the diagram. Do not forget to properly label the axis. And do not assume that every downward sloping curve is a demand curve. And do not confuse micro and macro diagrams. Very common mistake and very common reason of a student getting a B grade, whereas he has the potential of getting the A. Things you must do. Read the question carefully. Now, as an experience of this field, let me tell you, 50% of your grade is because of your preparation. Paper 2 की बात कर रहा हूँ. 50% is because of your preparation. 25% is because of the selection of the right question.
Out of 3 questions, which question you're choosing? Many times, students end up choosing a question whose part A is very easy, but part B is challenging. And they end up choosing it because they're lured by the easy part A. So part A लगता है मुझे तो आता है, तो यही तो कल किया था, भाई part B भी देख लेना. Do not choose a question only on the basis of part A. Look at both parts carefully. Selection of the question, selection of the right question out of those 3, and out of those 6, selection of 2 questions in paper 4 is key. 25% grade is going to be determined by that selection, and 25% is how well you have read the question, how carefully you have read it. Have you understood the requirement? तो मैं अक्सर अपने बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मैं अक्सर अपने बच्चों को जिनकी इंग्लिश वीक है उनको मैं मशवरा देता हूँ कि यू ट्रांसलेट द क्वेश्चन इनटू एनी लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड. उर्दू में कर लें ट्रांसलेट, और फिर उर्दू में दोबारा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और देखें दोनों में फर्क क्या आ रहा है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिफोर यू बिगिन आंसरिंग. आइडेंटिफाई विच इज द कमांड वर्ड, बिकॉज कमांड वर्ड का ताल्लुक है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ. डायग्राम को लेबल करना है, एरो शो करना है अगर शिफ्ट की है, और क्लियरली अपने ऐसे में लिखना है कि यू आर टॉकिंग अबाउट डायग्राम 1, यू आर टॉकिंग अबाउट डायग्राम बिलो. ये नहीं कि डायग्राम कहीं बना हुआ है, लिखा कहीं है, एग्जामिनर कह रहे हैं यार मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हैं. अगेन, एंड कीपिंग योर एग्जामिनर एंगेज्ड is a tool to get marks wherever the marks which you deserve. अगर आपके एग्जामिनर ने फोकस कर दिया लूज तो आपके नंबर हो गए लूज. और उसको एंगेज रखने का तरीका ये है कि डायग्राम बनाएं, करेक्टली लेबल करें, बताएं डायग्राम 1 है, बिलो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है जिसको आप रेफर कर रहे हैं. जी, सो स्लाइड नंबर 25. सो 150 स्लाइड, तो टोटल 150 स्लाइड. तो आई एम 20 मिनट, तो 20 मिनट में मैं 25 स्लाइड कर ली. तो 150 स्लाइड का मतलब है कि ये हम जरा थोड़ा सा साथ साथ ही हैं, लेकिन वी शुड बी एबल टू फिनिश इन 2 hours इंशाल्लाह. Now there is a question. I am giving you an example. Explain the link between opportunity cost and production possibility curve. Now, whenever there is a question, explain. The command word is explained here. The key concepts, the key terms, opportunity cost and production possibility curve, and opportunity cost. So there are 3: opportunity cost and production possibility curve. And what is the task of the question? What does this question want you to do? That is establish the link. Unless your answer provides link between opportunity cost and production possibility curve, you cannot get full marks. So this previous slide, so you need to give definitions of both opportunity cost and production possibility curve. You need to draw the diagram. You need to show that the slope of the PPC is the opportunity cost. You need to show 2 quantities of good X, 2 quantities of good Y, and you need to show that if you want to raise output of good X from this point to this point, the output of Y will go down from this point to this point, and that is why you are forced to give up good Y in order to make more of good X, and that is the opportunity cost. So you have to make a diagram, you have to give definitions. So whenever there is a question with the word explain, do give definitions of every term used in that question. Do make every appropriate diagram which you think is useful. But for every question which start with the word explain, there are marks for correct definitions. There are correct marks for example. अगर आप किसी बच्चे को कहें कि बेटा मुझे एक्सप्लेन करो, तो बच्चा कोई कहानी सुनाएगा आपको, कोई एग्जाम्पल देगा. तो ये क्या है, एक्सप्लेन करने में क्या 3 चीजें हैं, सुन लीजिए. एग्जाम्पल, जब आपको एक्सप्लेन का क्वेश्चन आए, डेफिनेशन, फार्मूला, इफ देयर इज एनी. For example, price loss demand. For example, terms of trade. For example, productivity formula. Example, for example, public good, street light, defense, lighthouse, marriage good. Example, education. So you need to give examples, definitions, formulas. So there is an important topic for this exam paper, money. So money, example, check, wrong example. Credit card, wrong example. Correct example, money, currency note, coins, bank deposits. And when the examiner asks example of money in modern economy,
Your answer is not complete unless you tell about the modern money, which is the money which is prevailing today, and that is online payment. Unless you mention online payment, you will not get 2 marks for the example. So examples, definitions, formulas. तो आप जो बच्चे एएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जितनी भी इकोनॉमिक टर्म है पूरे कोर्स में, स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, स्केर्सिटी से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इकोनॉमिक गुड्स, फ्री गुड्स, मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, डिमांड, सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव सप्लाई, मार्केट डिमांड, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्राइस ऑफ डिमांड, इनकम ऑफ डिमांड, कॉस्ट ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ सप्लाई, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, हर एक की एग्जांपल और डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और जहां फॉर्मूला आना चाहिए। एक पूरी लिस्ट बना लें, एक शीट बना लें, 4 नंबर इसके हैं, ए ग्रेड 22 पे है, तो 19 पे सी ग्रेड है, 3 नंबरों के फर्क से ए से सी में चले गए। 3 नंबर किसके हैं? 2 नंबर एग्जाम्पल के हैं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिखा, 1 नंबर कट गया। डायग्राम के लेवल एक्सेस नहीं किए, 2 नंबर कट गया, ए से सी हो गया। बाकी पूरा पेपर एक जैसा है, 4 सफे लिखे हुए, आपने भी दूसरे में 4 सफे लिखे हुए, एक एक चीज एक है, सिर्फ 2 वर्ड आपने नहीं लिखे, 2 वर्ड उसमें वो लिखे थे, आप उसका ए आपका सी है। तो यू बी वेरी केयरफुल कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। If question says using a diagram, it's a must to make a diagram. You cannot get full marks without the diagram. However, if there is a question which does not mention using a diagram, which says using ADAS analysis, you can make the diagram, you will be given the credit if it is correct and you have shown the relevance. You will not, you can still get full marks even without the diagram if you write properly. So diagram और वर्किंग अगर है क्वेश्चन में तो जरूर कर दीजिए, लेकिन बात का आंसर भी नंबर होते हैं, वर्किंग के होते नहीं। जी, अंडरस्टैंड व्हाट डज द क्वेश्चन वांट यू टू डू। डू नॉट कंफ्यूज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। डू नॉट कंफ्यूज कि इन्फ्लेशन हुई क्यों है और इन्फ्लेशन हो गई तो उससे होगा क्या। डू नॉट कंफ्यूज टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंज कैसे आती है और टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होने के बाद करता क्या। डू नॉट कंफ्यूज के एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के क्या इफेक्ट हैं, वो बताते हुए ये ना बताएं कि एप्रिसिएशन हुई क्यों है, ये बताएं एप्रिसिएशन हो गई अब क्या होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। व्हाट कॉजेज एन एप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द इकोनॉमी इफ करेंसी एक्सचेंज रेट appreciate, these are 2 different questions. इसी तरह अगर क्वेश्चन ये है कि कोई और एग्जांपल आती है बाद में देखो जी नहीं, तो एनीवे, तो यूज द डायग्राम हमेशा इकोनॉमिक पॉइंट से स्टार्ट करें, स्पेशली पेपर 4। पेपर 4 में आप डायग्राम बना रहे हैं, आपने ये नहीं शुरू करना कि शॉर्टेज है या सरप्लस है, नहीं, स्टार्ट करेंगे इनिशियल पोजीशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की या इनिशियल पोजीशन है इक्विलिब्रियम की, उसके बाद शिफ्ट शो करें और फिर वहां पे आप जाएं। तो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करना डायग्राम। अगर क्वेश्चन है आपकी एक पॉलिसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन कंट्रोलिंग द कंजम्पशन ऑफ ए डीमेरिट गुड, देयर इज ओनली वन पॉलिसी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डिस्कस द यूज ऑफ और डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ fiscal policy in controlling inflation. When question is only about one policy, you need to give, when we say discuss the effectiveness, yes or no, है effective या limitation है, do talk about at least one alternative policy. Question is only about one policy, but when it is asking you the extent to which it is effective, you need to give or analyze at least one more policy. Example, whether launching awareness campaign is the best strategy? Yes, it is. No, it is not. And another alternative policy. जी, so explain question में provide definitions, examples, formulas, diagrams. So whenever they say explain question, do these 4 things. Discuss question में both sides of the argument must be provided.
both sides of the doubt. So usually there are 12 marks for discussed questions in part B of paper 2, and those 12 marks are divided in 4 sections. 4 marks one side of argument, 4 marks the other side of the argument, 3 marks for evaluation, and 1 mark for the conclusion. So when we do mark the paper, we write 3 plus 2 plus 2 plus 1, meaning that student has scored 3 out of 4 from one side of the argument, 2 out of 4 from the other side of the argument, 2 out of 3 out of evaluation, and 1 out of 1 out of conclusion. So that is how the marks will be allotted to you. In case you get your paper rechecked और वहां पे लिखा हो कि जी 3 plus 2 plus 2 plus 1, तो ये उसका मतलब आएगा कि पहले साइड ऑफ आर्गुमेंट पे कितने नंबर लिए. तो देयर इज नो राइट आंसर, डिपेंड करता है कि आप क्या साइड लेते हैं. ठीक है, ब्रीफ आंसर दें. जब आइडेंटिफाई, स्टेट, आउटलाइन और लिस्ट का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब का क्वेश्चन है, तो तब भी आप एक आध सेंटेंस लिख के अपने नंबर पूरे ले सकते हैं. जी, यूजुअली द करेक्ट आंसर इज इनफ. अगर क्वेश्चन कंप्यूट और कैलकुलेट के बारे में, वर्किंग करना बेहतर है, आप कर दें और फॉर्मूला भी दे दें, लेकिन बेसिकली आमतौर पर इस क्वेश्चन के नंबर इसके सिर्फ करेक्ट आंसर भी होते हैं. जी, कमेंट जो मैं आपको आज एक्सरसाइज अपनी तैयार की भी स्किल एक्सरसाइज की बुकलेट दूंगा, मैंने उसमें कमेंट की बड़ी एग्जांपल दी हुई है प्राइस आसमान के क्वेश्चन के ऊपर. वो आपको भी कम्प्लीमेंट्री कॉपी की मिल जाएगी. वैसे वो टीचर सपोर्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है. जी, अब ये जो ऑन फिगर रूल है, मिसाल के तौर पे आपने आंसर गलत कैलकुलेट कर लिया, पीईडी का 0.8 कैलकुलेट कर लिया था 1.2. अब 0.8 है इन इलास्टिक, 1.2 है इलास्टिक. अगर आपने 0.8 कैलकुलेट कर लिया है, आंसर 1.2 था, नंबर नहीं मिलेगा कैलकुलेशन का, लेकिन कमेंट्री का नंबर मिल जाएगा अगर आप 0.8 को सही तरह इंटरप्रेट कर लेंगे. तो 0.8 मतलब ऑन फिगर रूल चलेगा कि आपने जो नंबर कैलकुलेट किया है, बाकी आंसर आपका उसके ऊपर बेस करें. और जो स्टूडेंट्स हैं वो साइन और नंबर को कंफ्यूज करते हैं. मेरी टिप, अब ज़ाहिर है मैं 2 आवर के अंदर कोई बहुत बातें नहीं बता सकता आपको. पीईडी, एमईडी और सीईडी के क्वेश्चन के अंदर खुदा का वास्ता है, जब भी फिगर देखें, नंबर को जब देखें, साइन के ऊपर हाथ रख दें, साइन के साथ नंबर को कंफ्यूज ना करें. और जब नंबर देखें, साइन को मत देखें, साइन को देखें तो नंबर को ना देखें. -1.2 सीडी का मतलब है, माइनस का मतलब है 1.2 है या जो मर्जी लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है कम्प्लीमेंट्री गुड, और माइनस को छोड़ दें, खाली 1.2 का मतलब है स्ट्रॉन्ग कम्प्लीमेंट. और अगर प्लस 0.8 है क्रॉस आसमान, तो प्लस का मतलब है सब्स्टिट्यूट्स, और 0.8 का मतलब है वीक सब्स्टिट्यूट्स. और अगर लिखा हुआ है इनकम आसमान में -0.8, तो माइनस का मतलब है इंफीरियर, 0.8 का मतलब है इनकम इनइलास्टिक. और प्लस 1.2 लिखा हुआ है तो प्लस इनकम आसमान का मतलब है नॉर्मल गुड, और 1.2 का मतलब है इनकम इलास्टिक डिमांड. तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज नंबर्स विद साइन. Whenever you comment on sign, ignore numbers, and when you look at numbers, ignore sign. And the exercise is available in the booklet you'll be given shortly. To what extent? Usefulness as well as limitations. So you have to come up. For example, to what extent the data given in the data response question support the relationship you have identified in part A. So आप कहेंगे yes is identified, and then example. No, it does not identify. It does not support examples. For example, question है इनकम बढ़ने से एजुकेशन बढ़ रही है. तो डिफरेंट कंट्रीज की दी हुई है जीडीपी और डिफरेंट कंट्रीज की एजुकेशन रेट दिया हुआ है. तो आप कहें यस इट सपोर्ट्स, क्योंकि इस कंट्री की इनकम भी हाई है, इसकी एजुकेशन भी हाई है. इसकी इनकम भी लो है, इसकी एजुकेशन भी लो है. नो इट डज नॉट. इस कंट्री की इनकम लो है, एजुकेशन बेहतर है. नो इट डज नॉट. इनकम ज्यादा है, एजुकेशन लो है. तो यू हैव टू कम अप. डाटा में हमेशा ऐसा होगा, कहीं पे सपोर्ट कर रहा होगा, कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा. आपने दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी. बहुत सारे आर्गुमेंट आपको देने हैं. एनालाइज वाले क्वेश्चन के अंदर प्रोसेस और इफेक्ट बताने हैं. अगेन वो जो बुकलेट में आपको दूंगा अभी इस सेशन के एंड के ऊपर, वो उस बुकलेट में आपको ये समरी मिलेगी कि ये एनालाइज क्या है और एवेल्युएट क्या है. बट द डिफरेंस स्टेटमेंट दी हुई है मैंने, उसमें मैंने कहा आपको आइडेंटिफाई करें कि ये नॉलेज की स्टेटमेंट है, एनालिसिस की है, या ये एवेल्युएशन की है.
ये slide number 36 is evaluate. You need to cover both sides and you must provide a right conclusion. So please, paper 2, paper 4, better first question are assets. Better first question, आखिरी दो पार्ट या आखिरी पार्ट जो डिस्कस से स्टार्ट हो रहा है. All questions which are starting with the word discuss. चाहे वो डेटा रिस्पॉन्स है चाहे ऐसे. प्लीज आखिरी दो लाइन आपने क्या लिखनी है? Therefore I conclude. क्लियरली बताना एग्जामिनर को कि मैं कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूं. Therefore I conclude that the data provided in the text does not fully support the relationship we have established. Therefore I conclude fiscal policy alone may not be effective in controlling demand pull inflation. Therefore I conclude that to control problems of unemployment and inflation at the same time, supply side policy is more useful. Therefore I conclude that price of demand alone cannot help a firm in determining pricing decisions. तो आखिरी दो लाइनें डिस्कस के क्वेश्चन में कंक्लूजन की होनी चाहिए. And you must give a strong reason conclusion. For example, please go through the booklet. उसकी आखिरी एक्सरसाइज मैंने बनाई इस तरह, मैंने दो स्टेटमेंट दिए हैं और लिखा है कि बताएं इसमें से कौन सी अच्छी कंक्लूजन है, कौन सी अच्छी कंक्लूजन नहीं है. तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, पढ़ेंगे और आगे मैंने रीजनिंग दी है कि इट इज अ गुड कंक्लूजन, इट इज नॉट अ गुड कंक्लूजन. दिस बुकलेट इज आल्सो अवेलेबल ऑन टीचर सपोर्ट वेबसाइट. तो कौन सा ऐसे आपने अटेम्प्ट करना है? प्लीज दोनों पार्ट देखिएगा. सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन बोथ पार्ट. ए पार्ट आसान देख के पिक नहीं कर लेना. 10 क्वेश्चन का आपको आज पेपर 2 के लिए 12 क्वेश्चन का मैं आपको गेस्ट पेपर दे रहा हूं. 12 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का पेपर 4 के लिए आप वो 12 क्वेश्चन तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा अंडरस्टैंड करके. लेकिन ये नहीं करना कि उसका कोई पार्ट ए और पार्ट ए कॉमन आ गया तो उसको पिक करना नहीं. पिक उसको करना है जो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको आते हैं. ये ना हो पार्ट ए में 8 मार्क्स हैं और पार्ट बी में 0 है. बिल्कुल ऐसा होता है. एक पेज लिखा हुआ है, सिर्फ एक पेज 12 आउट ऑफ 12, और ऐसा भी होता है 2 पेज लिखे हुए हैं 0 आउट ऑफ 12. अगर आप कोई चीज रेलिवेंट नहीं लिखेंगे, मैथमेटिकल तरीके से मार्किंग होती है. ऐसे नहीं है कि बस बच्चे ने कुछ लिखा नंबर दे दें, ऐसा नहीं है. अगर आपने ट्रैश लिखा है कोई नंबर नहीं मिलेगा, सही लिखा है पूरे नंबर मिलेंगे. और ये नहीं कहना कि ये बच्चे तो बड़ा पॉपुलर ऐसे होगा, सारे बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये बनाना करूं, मैं थोड़ा डिफरेंट करूं ताकि मेरी डिस्टिंक्शन आ जाए. नहीं, आपने वो ऐसा करना जो आपको आता है. ये नहीं करना बाकी लोग क्या कर रहे हैं. पेपर जो होता है एग्जामिनर वो कई क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कैंडिडेट पे कैंडिडेट. तो कोई पेपर कोई टीचर एग्जामिनर कर रहा है, अगर आपके हजारों पेपर हुए हैं तो एक एग्जामिनर 300-400 पेपर चेक करता है. तो वो कर रहा थी, वो उसकी राय नहीं बन जाएगी. पेपर वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छा आता है. आपने ये माइक्रो का, एक मैं माइक्रो का कर लूं, एक मैक्रो का कर लूं, 6 में से वो जो पेपर 4 है, नहीं जी नहीं, दोनों माइक्रो कर लें, दोनों माइक्रो कर लें जो आपको दोनों अच्छे आते हैं. सिंपल क्राइटेरिया. ठीक है, तो सेम प्रोबेबिलिटी है माइक्रो माइक्रो की. ये डिपेंड करता है आपको कौन सा आता है. हाँ, मल्टी पार्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इसी प्रेफर करता हूँ कि उसमें आपको जरा चांसेस ज्यादा है कि चलो ये पहले पैराग्राफ के 5 नंबर उधर मिल गए, उधर भी पहले पैराग्राफ के 5 नंबर मिल गए, तो आपने अगर मल्टी पार्ट किया तो 10 नंबर आ गया, 25 में से आ गए. तो मल्टी पार्ट क्वेश्चन को प्रेफर करें. अगर आपको वन पार्ट और मल्टी पार्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि दोनों अच्छे आते हैं तो आई विल पिक मल्टी पार्ट क्वेश्चन. पर क्वेश्चन वही लेना है एट द एंड ऑफ द डे जो आपको अच्छी तरह आता है जी. तो 35 मिनट्स एंड 39 स्लाइड्स, तो 150 स्लाइड्स एंड वी नीड टू कवर देम इन 120 मिनट्स, so we are a little behind. So section B, आप पेपर 2 gives the choice of 1 out of 3 assets और सबके 20 मार्क्स हैं. पार्ट ए कमांड वर्ड है, ये आपको तकरीबन पहले बता चुका. कमांड वर्ड पार्ट बी का डिस्कस है. हर पार्ट ए एक्सप्लेन है. यार ये मेरा बहुत टाइम जाता है, साइड को चेंज कर जी. पार्ट ए के 8 नंबर होते हैं, 4 नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, 4 एप्लीकेशन के होते हैं. और नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के नंबरों के लिए डेफिनेशन, फार्मूला और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है. एप्लीकेशन के नंबरों के लिए आपने डायग्राम और एग्जांपल भी चाहिए आपको. पार्ट बी 12 नंबर का है. पार्ट बी में 8 नंबर एनालिसिस किए हैं, 4 वैल्यूएशन के लिए हैं, और 4 जो वैल्यूएशन के लिए हैं उनमें से 1 नंबर कंक्लूजन का है. एनालिसिस में बोथ दिस साइड नीड्स टू बी कवर्ड, और अगर आपने एक साइड कवर की है तो कुछ पेपर में मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे और कुछ में मैक्सिमम 4. अगर आपने सिर्फ एक साइड कवर की है, एनालिसिस में सिर्फ एक साइड कवर की है, एवैल्यूएशन का नंबर नहीं मिलेंगे. देयर इज नो एवैल्यूएशन मार्क फॉर ए कैंडिडेट हु कवर ओनली वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट. तो अगर कोई पूछता है कि जी इनडायरेक्ट टैक्स लगने से
या क्या इंडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को लगाना चाहिए? तो कोई बच्चा अगर लिखता है कि इंडायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को यूज कर लेगी, कंजम्पशन ठीक हो जाएगी डीमेरिट गुड्स की, उसके मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे 12 में से। उसको दूसरी साइड में बतानी है कि इंडायरेक्ट टैक्स लगने से इन्फ्लेशन हो जाएगी, इंडायरेक्ट टैक्स लगने से जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी, इंडायरेक्ट टैक्स लगने से जो है रिग्रेसिव होगा, पुअर लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। अनलेस यू मेंशन द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट यू विल नॉट गेट एवेल्युएशन मार्क्स। तो वैल्यूएशन नंबर लेने के लिए आपको दोनों साइड का एनालिसिस करना है। एंड फॉर वैल्यूएशन मार्क कंक्लूजन मस्ट बी गिवन। नो वैल्यूएशन मार्क इफ ओनली वन साइड ऑफ द एनालिसिस इज कवर्ड। जी, अब नाउ आई एम गोइंग टू चूज द क्वेश्चन। तो ये मैंने क्वेश्चन कौन सा चूज किया जो मेरे गेस्ट पेपर में शामिल है। एक्सप्लेन विद ईयर ऑफ डायग्राम। 4 टॉपिक है इंपॉर्टेंट इस पेपर के लिए, मैं आपको लिस्ट दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। With the aid of a diagram. Now diagram is a must. One demand factor and one supply factor that can cause the depreciation of a foreign exchange rate. How would you do this question? Up to 2 marks for knowledge and understanding. Correct diagram. Vertical axis correctly label. P horizontal axis quantity demand supply curve correctly label. और यहाँ पे जो P नहीं आएगा, यहाँ पे exchange rate आएगा। अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो ये जो मार्क्स की मैंने कॉपी की है, तो क्या है कि नंबर कितने, 8 नंबर कैसे डिवाइड हो रहे हैं? 2 नंबर डायग्राम के हैं, प्लीज बातें नहीं करेंगे, साइलेंस इज नीडेड। 2 नंबर डायग्राम के हैं, 3 नंबर डिमांड फैक्टर को एक्सप्लेन करने के हैं और 3 नंबर सप्लाई साइड को एक्सप्लेन करने के। 2 + 3 + 3। तो एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन दे दी मैंने, बता दिया कैसे डिटरमिन होते हैं दूसरे बुलेट पॉइंट में। तीसरे में बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सचेंज रेट में फॉल इधर डिमांड के डिक्रीज होने से या सप्लाई के इंक्रीज होने से। जस्ट बेसिक नॉलेज। डिमांड ऑफ करेंसी क्यों फॉल करेगी? मे बी इंटरेस्ट रेट के कम होने से। और 3 नंबर है इस स्लाइड पे, इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट इन आवर करेंसी बिकम लेस अट्रैक्टिव, फाइनेंशियल कैपिटल इनफ्लोस फॉल, डिमांड ऑफ करेंसी फॉल रिजल्टिंग इन डेप्रिसिएशन। तो हमने स्टार्ट कहां से किया? हमने क्वेश्चन का एंड करना है कि डेप्रिसिएशन हो रही है। क्वेश्चन ये पूछा गया डेप्रिसिएशन कैसे होगी। 3 मार्क्स के लिए दिस इज इनफ। द डायग्राम, क्वांटिटी ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट। इफ यू राइट प्राइस, आपका नंबर कट गया, ए से बी में चलेंगे। डिमांड फॉर करेंसी इज गोइंग डाउन, एक्सचेंज रेट इज फॉलिंग। सप्लाई अप। नाउ यू हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स। अब तक आपको 5 नंबर मिल चुके हैं। 3 नंबर डिमांड साइड को एक्सप्लेन करने के, 2 नंबर डायग्राम के। आप सप्लाई से, सप्लाई करेंसी में राइज बिकॉज ऑफ लो इंपोर्ट टैरिफ। लो इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड मेक देम चीपर। मोर इंपोर्ट्स एंड मोर इंपोर्ट्स मींस वी हैव टू सप्लाई मोर आवर करेंसी and that will result in depreciation. You have to end the answer and the paragraph by writing this word because this is the question कि depreciation कैसे होगी। आपके supply of currency rises, तो एग्जाम में फिर क्या होगा? मैंने तो नहीं पूछा सप्लाई क्यों राइज करती है, मैंने पूछा डेप्रिसिएशन क्यों होती है। तो आपने कंक्लूड करना है since supply of currency will rise, depreciation will take place. Supply curve rightward shift. Optional diagram. There is no need for you to make this diagram, but we have made it. Again, quantity of currency, not just the quantity. Exchange rate. Supply curve shifts rightward. Exchange rate falls. Depreciation. 8 marks. One diagram, 6 lines. 8 out of 8. 3 pages. 0 out of 8. If you write written irrelevant stuff. As examiner, we don't mind giving 0 marks. And we do give 0 marks. Part B, discuss whether an appreciation of a country's currency is likely to cause both a rise in inflation and a decrease in employment. Appreciation के effect inflation के ऊपर up to 4 marks. Appreciation के effect over employment 4 marks. Evaluation 4 marks. Out of those 4, 1 is for the conclusion. Analysis. Appreciation is increased in exchange rate. Exports expensive, import cheaper. Reduces net exports if yield is high. Net exports part of AD falls. Demand for inflation goes down.
Output employment goes down if economy is operating at or above full employment. Full employment, below full employment भी थी, AD का लेफ्ट शिफ्ट होगा, employment कम. Vertical AS था, AS vertical था, AD fall हुआ, inflation control होगी. So you need to tell inflation पे effect कब आ रहा है, employment पे कब आ रहा है. AS vertical है, AD के लेफ्ट शिफ्ट होने से price level कम. AS horizontal है, AD के कम होने से employment कम. डायग्राम बन गया. इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रही है, आउटपुट कम हो रही है, क्योंकि आउटपुट कम हो रही है, वर्कर भी कम चाहिए आउटपुट बनाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी. एनालिसिस कंटिन्यूज. एप्लीकेशन. इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बिकम चीपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, एएस शिफ्ट टू द राइट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फॉल्स, हाउएवर एम्प्लॉयमेंट गोज अप. Diagram. AS shifts to the right. Inflation is controlled, but output rises, and in order to make this output, more people will be employed. So the impact on price level is quite obvious. Demand for inflation as well as cost push inflation is going down. Employment, however, may even go up. Evaluation now. 8 marks we have scored now. Now we are moving to the valuation. Other countries may remove trade barriers, making our exports cheaper once again. Thus, net exports may rise even with currency appreciation. हमारा शेयर अप्रिशिएट हुआ, एक्सपोर्ट महंगी हो गई, लोगों ने ऑर्डर देना बंद कर दिया, पर दूसरे मुल्कों ने टैरिफ कम कर दिए, एक्सपोर्ट दोबारा चीपर हो गई, ऑर्डर आना शुरू हो गई. एक्सपोर्ट चेंज नहीं होगी, ना इन्फ्लेशन चेंज होगी, ना एम्प्लॉयमेंट चेंज होगी. दूसरे मुल्कों में इनकम बढ़ गई. एप्लीकेशन से हमारी एक्सपोर्ट महंगी हुई, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ इनकम ज्यादा है, दे आर स्टिल बाइंग आवर गुड्स. एक्सपोर्ट्स आर स्टिल गोइंग अप. अदर कंपोनेंट्स ऑफ एडी. एडी का एक कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, बाकी भी 3 है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो एक्सपोर्ट हो सकता है कम हो जाए एप्लीकेशन से, लेकिन बाकी तीनों कंपोनेंट बढ़ जाए. ये वैल्यूएशन है. कंक्लूजन. The impact of depreciation on inflation employment depends on price loss market for net export, availability of excess capacity, and reaction of other countries. अगर हमारी पीईडी नेट एक्सपोर्ट की लो हो, एप्रिसिएशन होने के बावजूद हमारी नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, कम नहीं होगी. अगर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल हो तो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा, नेट एक्सपोर्ट कम भी हो तो हम क्या करेंगे, वी कैन मीट द डिमांड. अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे है, वी कैन मीट द डिमांड बाय प्रोड्यूसिंग मोर. एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है. रिएक्शन ऑफ द कंट्रीज, दूसरे मुल्कों में टैरिफ पॉलिसी के. हमारा एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है एक्सपोर्ट का, दूसरा फैक्टर है कि हमारी दूसरे मुल्कों की टैरिफ पॉलिसी के. अनदर क्वेश्चन विच इज माय गेस, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन की लास्ट का कंपैरिजन. ये दूसरे वेरिएंट में पेपर आया है, वेरिएंट 2 में भी ये पेपर नहीं आया. ये आया था प्राइस इलास्टिसिटी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंपैरिजन. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पीडी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन. क्वेश्चन है पीडी स्मार्टफोन इज 0.8 इन द शॉर्ट रन एंड -1.5 इन द लॉन्ग रन. क्यों फर्क है इनका? क्योंकि ये एक्सप्लेन का क्वेश्चन है. पार्ट ए, पीडी की डेफिनेशन का एक नंबर, फॉर्मूला का एक नंबर. 0.8 प्राइस इनइलास्टिक है, क्योंकि ये लेस देन 1 है, और प्राइस इनइलास्टिक होती क्या है उसका एक नंबर. 1.5 इज मोर देन 1 है, इसलिए ये इलास्टिक है, और प्राइस ऑफ डिमांड होती क्या है इसका एक नंबर. तो 4 नंबर. 4 नंबर इस बात के, एक फैक्टर को बताने के, 4 नंबर दूसरे फैक्टर को. 2 नंबर एक फैक्टर को, 2 नंबर दूसरे फैक्टर को. इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर गेट मोर टाइम टू फाइंड सब्स्टिट्यूट्स as PD rises. In the long run, time is enough for new firms to enter and raises options for consumers. अब ये न्यू फर्म्स एंटर हुई हैं, इससे पीईएस बढ़ती है, लेकिन मैंने इसको लिंक कर दिया कंज्यूमर के साथ कि ऑप्शन ज्यादा हुई. तो सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फॉर पीईएस. अब मैंने इसका सैंपल आंसर आगे दिया. तो आप स्लाइड नंबर नोट कर रहे हैं अगर आपको ये क्वेश्चन दोबारा देखना है. तो मैंने ये डेफिनेशन दी, एक नंबर डेफिनेशन का, एक नंबर फॉर्मूला का, 2 नंबर आगे. So on this side, 65 side, you're scoring 2 marks. 1 mark for definition, 1 mark for the formula. And formula is very important. Even if you give a wrong definition, but give correct formula, you may still get 2 marks. Because in economics, economic seminar say
कि जी formula is the highest level of understanding. So a student who can give correct formula can get 2 marks for knowledge understanding. So a PED of point A is less than 1. It is price inelastic, and please note, price inelastic or price elastic, when we talk about that, we use the word percentage changes. So price inelastic demand is when percentage change in quantity is less than percentage change in price. And elastic is when percentage change in quantity is more than the percentage change in price. So this is again 2 marks. 1 mark for the first paragraph, 1 mark for the second paragraph, and total 4 marks till now out of 8. The other 4 marks, these 4 marks were knowledge. Other 4 marks application. In the long run, existing firms can raise production and new firms can enter as they get more time to imitate technology. This raises options for the consumers, resulting in higher PED, 2 marks. In the long run, consumers can have more time to search for alternatives, resulting in their increased ability to respond to changes in prices. तो फोन नया आया तो मुझे चाहिए आज ही, तो मैंने दुबई अपने दोस्त को भेज दिया, अपने ड्राइवर को भेज दिया टिकट लेके, मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैंने भेज दिया उसको, तो दुबई से फोन लेके आ गया। पर लॉन्ग रन में मैं होता है फी सेंटर से भी पता कर लूँ और मैं कोई और जगह से पता कर लूँ, तो लॉन्ग रन में ऑप्शन ज्यादा है, टाइम ज्यादा है। तो these are 4 marks this slide. Again, very important question for this paper. गवर्नमेंट के लिए पीईडी की यूजफुलनेस और एमईडी की यूजफुलनेस. Now this is one of my 12 questions guess के usefulness of elasticity of demand for the government. Usefulness of PED for the government. PED क्या? अब इसके अंदर को बच्चे बताने शुरू कर दें, प्राइस ऑफ डिमांड क्या होती है, प्राइस इनइलास्टिक क्या होती है, और रेवेन्यू का ताल्लुक है, लो प्राइस चार्ज करें रेवेन्यू बढ़ जाएगा. लो प्राइस फर्म चार्ज करती है, गवर्नमेंट नहीं. क्वेश्चन गवर्नमेंट के बारे में. अगर फर्म के बारे में क्वेश्चन आए तो आप कह सकते हैं कि पीईडी की यूजफुलनेस ये है कि लो प्राइस चार्ज करें उस प्रोडक्ट की जिसकी लास्ट डिमांड हाई है ताकि रेवेन्यू ज्यादा मिले, और हाई प्राइस चार्ज करें उस प्रोडक्ट की जिसकी पीईडी लो है. ये है फर्म के लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन गवर्नमेंट के बारे में है. मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन पेपर, मोर देन हाफ द क्वेश्चन, मोर देन हाफ द कैंडिडेट विल गेट इट रॉन्ग. और वो फर्म के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है रेवेन्यू के साथ. So the answer outline is given to you. Usefulness for the government. Helps government determine indirect taxes and subsidies. To generate revenue, high taxes must be imposed on goods with low PED. Low PED की प्रोडक्ट होगी, जैसे फ्यूल है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, आपने गाड़ी में फिर भी फ्यूल डलवाना है, गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज्यादा मिलेगा. और अगर आप चाहते हैं डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम हो, टैक्स तभी इफेक्टिव है अगर पीईडी हाई है. अगर लोग सिगरेट पीते रहेंगे टैक्स के बाद भी, क्योंकि वो एडिक्टिव है, हैबिट फॉर्मिंग है, तो पीईडी बता रही है आपको कि टैक्स लगाना यूजफुल नहीं है, कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा. ये गवर्नमेंट को एक लेसन मिल रहा है पीईडी देख के. जी, सब्सिडीज कैन बी गिवन टू नेसेसिटीज. जी, कैसे पता लगेगा नेसेसिटी कौन सी है जिनकी पीईडी लो है. हाई इंडिया टैक्सेस में भी चार्ज ऑन लग्जरीज, कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को लग्जरीज कौन सी हैं जिनकी पीईडी हाई है. इंपोर्ट टैरिफ में भी इंपोर्ट पीईडी फॉर इंपोर्ट इज हाई. इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं, इंपोर्ट की पीईडी हाई है तो टैरिफ लगा दें. हाँ, अगर इंपोर्ट नेसेसिटीज हैं, नेसेसिटीज के लिए तो चलो लगाना नहीं चाहिए. अगर वो उनकी पीईडी लो है इंपोर्ट की, तो टैरिफ लगा के इंपोर्ट कम नहीं होंगी, आपको कोटा लगाना चाहिए. फिजिकली आप बैन कर दें क्वांटिटी को, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे महंगी होगी, लोग फिर भी लेते रहेंगे. तो दीज आर द लेसन्स फॉर द गवर्नमेंट फॉर पीईडी. यूजफुलनेस ऑफ एमईडी फॉर द गवर्नमेंट. रिसेशन अगर आ जाए, रिसेशन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, इनकम कम हो रही है, इनकम टैक्सेस कम कर दें उन एरियाज में, उन बिजनेसेस के ऊपर जो नॉर्मल गुड बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल गुड की डिमांड कम होती है रिसेशन में, इनकी इनकम कम होती है, इनको फेवर करें, और इनको आप अकोमोडेट करें, इनको लो टैरिफ और लो टैक्स. हाई इंटरेस्ट टैक्सेस में भी कलेक्टेड इन एरियाज फॉर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस इंफीरियर गुड्स, क्योंकि रिसेशन में इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, रिसेशन में इनकम फॉल करती है, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स राइज करती है, और इस वजह से वहां से आपको ज्यादा टैक्स मिल सकता है. इंडियन टैक्सेस कम करेंगे, सब्सिडीज दें रिसेसिटीज पे, ताकि अफोर्डेबल हो. रिसेशन में पुअर लोग बहुत हिट होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए आप रिसेसिटीज के ऊपर टैक्स कम कर दें व्हेन देयर इज ए स्लम इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी.
और लग्जरीज के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दें, क्योंकि टैक्स रेट बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप टैक्स रेट अनचेंज रखेंगे, क्योंकि लग्जरीज की डिमांड कम हो जाती है, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कॉस्मेटिक्स, लग्जरी फर्नीचर, डिजाइनर फर्नीचर कम बिकता है, आपको टैक्स कम मिलेगा। आप चाहते हैं आपको टैक्स रेवेन्यू पहले जितना ही मिले, तो आपको टैक्स रेट बढ़ाना है, ताकि जब भी लग्जरी गाड़ियों का वॉल्यूम बेशक कम भी हो जाए, आपको टैक्स रेवेन्यू उतनी ही मिले। एवेल्युएशन, पीडी और एमईडी एस्टिमेट्स हैं एंड दे मे नॉट बी एक्यूरेट। तो आपका कोई भी डिसीजन जो इन पे बेस कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन जो इन पे बेस कर रहा है, दैट मे नॉट बी एक्यूरेट एज वेल। और ये पास्ट डाटा के ऊपर कैलकुलेट होती हैं, जबकि डिसीजन करने हैं फ्यूचर के बारे में, तो दे मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर फ्यूचर। Taxes or subsidies are often influenced by political decisions and not by PD and MED. गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, आज गवर्नमेंट को फ्यूल के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन आज अगर फ्यूल पे गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो द करंट गवर्नमेंट विल लूज पॉपुलैरिटी एंड द ऑपोजिशन, इमरान खान की जो ऑपोजिशन है, दैट विल गेन पॉपुलैरिटी। तो गवर्नमेंट जो है पीडी को नहीं देखेगी, गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर देखेगी और टैक्स नहीं लगाएगी फ्यूल के ऊपर। कंक्लूजन, फॉर ए मोर इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, PD, MED and information about other socio-economic factors must be considered। सिर्फ PD, MED नहीं देखेंगे, गवर्नमेंट के पास बाकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कोई भी इफेक्टिव पॉलिसी बनाते हैं। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन क्रॉस लॉस के बारे में आ जाए, तो व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ क्रॉस लॉस फॉर द गवर्नमेंट। तो ये मैंने स्लाइड नंबर 75, तो हाफ वे थ्रू हम आगे, आधी स्लाइड हमारी खत्म हो गई और अभी 4 बजे 5 मिनट है, तो वी आर वेरी मच ऑन टाइम। Import tariffs may be decreased on the import of goods whose local substitutes are not available। ऐसी चीजों में इंपोर्ट टैरिफ कम कर दें जिनके लोकल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, और लोकल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो, सब्स्टिट्यूट वीक हो, तो क्रॉस लॉस लो होती है। कैसे पता लगेगा कि इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल? क्रॉस लॉस। और अगर क्रॉस लॉस हाई है, मीन लोकल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाए ताकि लोग लोकल चीजें। और अगर आप प्राइसेस स्टेबल करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर गुड्स की, तो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए कम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनकी नेगेटिव क्रॉस लॉस डिमांड होती है, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर सस्ता करेंगे तो एग्रीकल्चर गुड्स सस्ती हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जाम्पल दी हुई है कि स्कूल टेक्स्ट बुक को अगर उनकी प्राइसेस को स्टेबल करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को पेपर के ऊपर, जो स्टेशनरी पेपर है उसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए, कम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेगेटिव क्रॉस लॉस। तो गवर्नमेंट देखेगी क्रॉस ऑफ डिमांड अगर पॉजिटिव है इंपोर्ट की और लोकल गुड्स की, तो गवर्नमेंट देखेगी पॉजिटिव है तो क्या वो हाई है या लो है। हाई है तो गवर्नमेंट टैरिफ ज्यादा लगाए, लो है तो टैरिफ कम लगाए। और इस तरह मैंने आपको आगे बाकी एग्जांपल दी। यूज ऑफ डायग्राम्स, 4 मेन डायग्राम, पीपीसी, डिमांड सप्लाई कर्व। डिमांड सप्लाई कर्व 3 तरह के हैं, माइक्रो, मैक्रो और फॉरेन एक्सचेंज। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये कौन सा कर्व है हम नहीं बता सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि इसके एक्सिस क्या है। मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दिस डायग्राम, what is inside the diagram. More important is what is written on the axis. एक्सिस पे क्या लिखा है उससे डायग्राम चेंज होगा। तो यही डायग्राम अगर हम लेबल करें गुड एक्स, गुड वाई एंड टचिंग बोथ एक्सिस, इट बिकम्स द पीपीसी। पीपीसी के लिए 3 शर्तें पूरी होंगी, पीपीसी के नंबर मिलेंगे। 2 डिफरेंट क्वालिटीज ऑन एक्सिस, पीपीसी मस्ट बी टचिंग बोथ एक्सिस। अगर आपका ये एक्स को टच नहीं कर रहा, आपका नंबर क्या होगा। एंड इट मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, लीनियर हो नॉन लीनियर हो फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ही आ गया इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो वहां पे लीनियर के नंबर नहीं मिलेंगे। तो 3 शर्तें लिखी हुई हैं स्लाइड नंबर 81 पे। माइक्रो डिमांड कर्व, क्वांटिटी, प्राइस। वही कर्व देखिए 81 पे और 82 पे एक जैसा डायग्राम है, एक्सिस का फर्क है तो ये डायग्राम चेंज होगा। और 83 पे वही डायग्राम है, एक्सिस का फर्क हुआ, मैक्रो का डिमांड कर्व बन गया, एडी, एग्री डिमांड। अगर आप इसमें कोई एक चीज भी मिस कर देंगे, ये एडी को सिर्फ डी लिख देंगे, तो आपने नंबर लूज कर दिया अपना। आपके 22 नंबर 21 बन गए, ए से बी हो गए। यू हैव टू बी केयरफुल, क्या माइक्रो का कर्व बना रहे हैं या मैक्रो का। जो एक्सरसाइज बुकलेट जिसका मैं वापस जिक्र कर रहा हूं, उसमें डायग्राम्स की भी एक पूरी एक्सरसाइज है कि किस एक्टिविटी के लिए, किस इवेंट के लिए कौन सा डायग्राम बनाएंगे। एंड अगेन सेम डायग्राम, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व,
पर नाउ क्वांटिटी ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट, ये इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट का। तो 4 डायग्राम डिफरेंट हो गए, एक डायग्राम पे एक्सेस चेंज होने से 4 डायग्राम बने। माइक्रो डिमांड साइकिल, अगर आपसे को पूछे, आप देखिए जरा थोड़ा स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही पूरी तरह, अब ये स्लाइड का नंबर नजर नहीं आएगा, एनीवे तो ये कब देखेंगे, अगर क्वेश्चन आए मार्केट के बारे में, क्वेश्चन मार्केट के बारे में है या सिंगल प्रोडक्ट के बारे में है, आपने ये डायग्राम, कुछ नहीं आता आपको क्वेश्चन का, ये डायग्राम ना दे आपको 2 नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा। जी, अगर क्वेश्चन हो इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कंट्री के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आपने ये करना। अगर सिंगल प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट के बारे में है तो ये बनाना है, जो स्लाइड नंबर 85 पे दिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में हो, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, इन्फ्लेशन के बारे में हो, तो आपने जो डायग्राम स्लाइड नंबर 86 पे वो बनाना। और अगर एक्सचेंज रेट के बारे में क्वेश्चन हो, एक्सचेंज रेट का जिक्र हो, तो जो डायग्राम 87 पे वो बनाना है। देख लीजिए, इसमें पी प्राइसेबल नहीं है, एक्सचेंज रेट। अभी आपका नवंबर में क्वेश्चन आया है, पार्ट ए था डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, तो वो क्वेश्चन के अंदर बहुत बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने एडीएस का डायग्राम बनाया, लेकिन बजाय प्राइस लेवल लिखने के पी लिखा, तो उसका 1 नंबर कट गया। और अगर 2 डायग्राम दोनों में ये गलती की तो 2 नंबर कट, बाकी सब ठीक बना हुआ है, एडीएस भी लिखा हुआ है, रियल आउटपुट भी लिखी हुई है एक्स एक्सिस पे। तो ये प्लीज काइंडली नोट कर लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ करेंसी, रियल आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ, ये सब चीजें आपको नजर आनी चाहिए कि आपने पीपीसी बनाया है या माइक्रो का या मैक्रो का। सेक्शन ऑफ डायग्राम, स्लाइड नंबर 89। अगर क्वेश्चन पीपीसी का कब बनाएंगे, अगर क्वेश्चन है चॉइस के बारे में, ट्रेड ऑफ के बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पीपीसी बनाएंगे। ये देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट शो किया, मैंने नंबर नहीं दिए। अब यहां मैं लिख दूं 10, यहां लिख दूं 8, तो ये 8 और 10 में 2 का फर्क, तो ये इतना, ये शायद फिर ठीक हो जाए, पर 10 और 5 लिख दूं तो ये ठीक नहीं होगा, तो नंबर नहीं लिखने। अगर टूरिज्म की मैं डिमांड को, टूरिज्म की प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, टोबैको की प्रोडक्शन कम होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये प्रेफरेंस चॉइस का क्वेश्चन आ जाए, चॉइस प्रेफरेंस, तो ये डायग्राम बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, राइटवर्ड शिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज, मूवमेंट टुवर्ड्स पीवीसी। आप जरा ये मार्कर रखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं चूंकि कोशिश कर रहा था बोर्ड यूज ना करूं, तो जरा देखिएगा कि ये 3 तरह के डायग्राम आते हैं। मैं उन लोगों की भी हेल्प कर दूं जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं सेशन, तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं करता जी। अगर क्वेश्चन आए चॉइस और प्रेफरेंस के बारे में, तो आपने ये डायग्राम जो आपके सामने आया है 18 स्लाइड नंबर 90, ये बनाना है। जी नहीं जी, तो ये 90 स्लाइड पे जो डायग्राम है, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रेफरेंस, डिसीजन मेकिंग के बारे में क्वेश्चन है, तो ये बनाना है। बल्कि एक और बार बोल रहा हूं, एलोकेशन ऑफ रीएलोकेशन रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन है, रीएलोकेट कर दिया है, एक गुड को ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, कम दे दिए, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस के बारे में क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बनेगा। अगर क्वेश्चन आए इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में या रिसोर्सेज के इंक्रीज होने के बारे में, स्लाइड नंबर 91, राइटवर्ड शिफ्ट पीपीसी में, इकोनॉमिक ग्रोथ से राइटवर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, राइटवर्ड शिफ्ट, और रिसोर्सेज कम हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जरा देखिए, अभी एक क्वेश्चन था पेपर में, वो था कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई और वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई। वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो शिफ्ट नहीं आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट के कम होने या ज्यादा होने से शिफ्ट नहीं आएगी। एक ही पीपीसी ड्रॉ करेंगे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आप मूवमेंट शो करेंगे एरो के साथ, एक पॉइंट लेंगे इनसाइड पीपीसी और मूवमेंट शो करेंगे फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, एक ही पीपीसी बनेगा।
क्वेश्चन अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, आप कोई 2 पीपीसी नहीं बनाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है रिसोर्सेज उतने ही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अब आप यूज नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि पहले पीपीसी के करीब थे, अब आप दूर चले गए हैं, पीपीसी वही है। तो 2 पॉइंट बनाएंगे, एक इनसाइड पीपीसी और एक एड पीपीसी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज का क्वेश्चन है तो आप शो करेंगे फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी, और अगर क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है तो फ्रॉम पीपीसी टुवर्ड्स इनसाइड पीपीसी। तो 3 तरह के डायग्राम है, एक है शिफ्ट का, रिसोर्सेज चेंज हो, एक है उसी पीपीसी में टुवर्ड्स इनसाइड पीपीसी मूव करने का, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, और एक है चॉइस ऑफ प्रेफरेंस का, उसमें पीपीसी पे मूवमेंट है। ये 3 तरह के डायग्राम एग्जामिनर पूछता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा है। स्लाइड नंबर 92, माइक्रो का डिमांड का पूछना है। अगर क्वेश्चन पूछे मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो माइक्रो डिमांड सप्लाई कर्व, तो ये उसने पूछा है इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड की मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। मार्केट पे फर्क पड़ेगा तो 4 चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। मार्केट का क्वेश्चन होगा 4 चीजें, पूरे नंबर लेने के लिए 4 चीजें। पहली बात, डिमांड कब शिफ्ट होगा या सप्लाई कब। नंबर 2, किधर शिफ्ट होगा। नंबर 3, उससे एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी। नंबर 4, प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क होगा। तो अब जरा देखिए, मार्केट पे नॉर्मल गुड कौन सा कब शिफ्ट होगा, डिमांड या सप्लाई। डिमांड कब, किधर शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट। नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ती है इनकम के बढ़ने से, राइट पर शिफ्ट होगा। एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई, डिमांड राइट पर चली गई है, डिमांड ज्यादा हो गई है, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। ये चारों चीजें बतानी है, पूरे नंबर में। स्लाइड नंबर 93 क्या बता रहे हैं, फुल 4 मार्क्स। शो क्लियरली इनिशियल एंड न्यू इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम जी। फिर करेक्ट शिफ्ट राइटवर्ड, एक्सेस डिमांड, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़। प्लीज रिमेंबर, आपने जब भी एडीएस या डिमांड सप्लाई का शिफ्ट करना है तो आपने जरूर बताना है एक्सेस डिमांड हुई है या एक्सेस सप्लाई, और प्राइस पे और क्वांटिटी पे इंपैक्ट माइक्रो में, और प्राइस लेवल पे और रियल आउटपुट पे इंपैक्ट मैक्रो में बताना है। ये डायग्राम के अगर 4 नंबर हो, इस पिछले डायग्राम के जो पेज नंबर 93 पे है, जो पेज नंबर 94 पे है, इसके 2 नंबर है, क्योंकि इसने डिमांड सप्लाई कर्व को लेबल किया है और डिमांड कर्व को राइट पर शिफ्ट किया, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं शो किए और इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी में इंपैक्ट शो नहीं किया, तो 2 नंबर। और इस बच्चे को 0 नंबर मिलेगा क्योंकि इसने लेबल गलत कर दी है, और बहुत बच्चे गलती करते हैं, उल्ट कर देते हैं कभी। ठीक है, माइक्रो डिमांड सप्लाई कर्व कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन द इफेक्ट सच एज सब्स्टिट्यूट गुड अगर महंगी हो गई, राइट पर शिफ्ट। कम्प्लीमेंट्री गुड महंगी हो गई, लेफ्ट पर शिफ्ट डिमांड कर्व। एडवर्टाइजमेंट बेहतर हुई, राइट पर शिफ्ट। बेजिस बढ़ी, इंटरटेक्स लगे, सब्सिडी रिमूव हुई, तो सप्लाई कर्व राइट लेफ्ट पर शिफ्ट। जो चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेगी वो सप्लाई कर्व को चेंज करेगी। सप्लाई कर्व में शिफ्ट के मेन रीजन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो डिमांड तो कब बनाएंगे, जब क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ पॉलिसी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर। करंट अकाउंट को ठीक करने के तरीके, आपके जो 4 टॉपिक हैं जो मैं आपको गेस्ट में देने जा रहा हूं, उनमें से एक टॉपिक है करंट अकाउंट का, कि उसका डेफिसिट कैसे ठीक होगा। तो वन ऑफ द मेथड्स टू करेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। तो क्वेश्चन पूछा है प्राइसेस पे, क्वेश्चन प्राइस पे नहीं है। अगर प्राइस पे होता माइक्रो का होता। मैक्रो में आपने प्राइस का वर्ड नहीं लिखना, मैक्रो में प्राइसेस का या प्राइस लेवल का, बल्कि करेक्ट वर्ड जनरल प्राइस लेवल। मैं भी आपको मिसाल देता हूं, नवंबर का पेपर था, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन था, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन थी, 2 नंबर की डेफिनेशन। सुन लीजिए, इट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल 0 आउट ऑफ 2। इट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल 0 आउट ऑफ 2। It is increase in general price level 1 out of 2. It is increase in general price level over a period of time. Yeah, it is a persistent increase in general price level 2 out of 2. Just look at the difference. I am telling you with my own experience. This November there was a question in which there were 2 marks for definition of inflation, and how were those marks left? Increase in price level. Inflation is increase in price level 0 marks. Inflation is persistent increase in price level 1 out of 2. Inflation is persistent increase in general price level 2 out of 2. So for macro, use the word general price level. For micro, use the word price.
or at least use the word prices. So prices, output, employment, macro. Expenditure dampening, expenditure कम हो रहे हैं, AD लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, प्राइस लेवल भी कम हो रहा है, रियल आउटपुट भी कम हो रही है. A fall in AD will have a greater effect on output अगर AS horizontal है. A fall in AD will have a greater effect on output अगर AS prices अगर जा सकता है अगर AS vertical है. ये डायग्राम बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये स्लाइड नंबर 99 आप दोबारा देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा. The diagram can be used to explain cost push inflation AS की शिफ्ट से, demand pull inflation AS की शिफ्ट से, improvement technology AS की शिफ्ट से, workers training AS की शिफ्ट से, infrastructure development दोनों की शिफ्ट से. अब बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो ADS दोनों को शिफ्ट करते हैं. तो मेरे गेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन ये भी शामिल है, फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक क्या है सप्लाई साइड पॉलिसी के साथ. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा उसे एडी बढ़ेगा, पर अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एजुकेशन ट्रेनिंग पे तो एएस भी बढ़ेगा. अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एडी भी बढ़ेगा, एएस भी बढ़ेगा. गवर्नमेंट स्पेंडिंग है सब्सिडीज पे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, एडी भी बढ़ेगा और साथ एएस भी बढ़ेगा. वैसे सब्सिडीज के साथ चूंकि प्राइसेस कम होती हैं मूवमेंट आएगी एडी पे, एडी शिफ्ट नहीं होगा. फॉरेन एक्सचेंज डिमांड पे अगर एक्सचेंज रेट पे वीक करेंसी, अच्छा वो जो मैं बीच में एक स्टक हो गया था तो मैं एग्जांपल में दे वो मैं ये कहने लगा था कि एक क्वेश्चन आता है एक्सचेंज रेट कम हुआ इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा. ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है इन्फ्लेशन बढ़ी एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होगा, ये दूसरा क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन क्या है? विद हेल्प डायग्राम इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट कुड प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू Malawi's वीक करेंसी. करेंसी वीक है, एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? तो एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, करेंसी की डिमांड बढ़ने का मतलब है एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा. तो अगर एक्सचेंज रेट इंपैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, एक्सपोर्ट चेंज, इन्फ्लेशन, तो ये बहुत क्वेश्चन कॉमन है. इन्फ्लेशन होने से एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन होने से एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन अगर होगी अज्यूमिंग कि इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली हायर है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में, ये वर्ड लिखना है जरूर, कंपैरेटिवली हायर इन्फ्लेशन देन अदर कंट्रीज, तो आपकी एक्सपोर्ट रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो जाएंगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट फॉल कर देगा. तो इन्फ्लेशन ज्यादा होने से एक्सचेंज रेट फॉल करता है. अगर आपने कभी गवर्नर स्टेट बैंक की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कभी फाइनेंस मिनिस्टर को सुनाओ, तो ये कहेगा कि ये आप बताइए डॉलर क्यों वैल्यू गेन कर रहा है, रुपी वैल्यू क्यों लूज कर रहा है, तो वो आपको जवाब में कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज्यादा है. Inflation means price level is rising. Price level rising means your goods are relatively less price competitive. And that means less exports. Less exports means less demand for currency. Less demand for currency means less exchange rate. Real income changes. Income बढ़ जाए, लोग ज्यादा अफोर्ड करेंगे इंपोर्ट लेना, इंपोर्ट बढ़ जाएंगी, सप्लाई फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी. तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तब एक्सचेंज रेट कम हो सकता है. इंटरेस्ट रेट चेंज पहले बताया, इंटरेस्ट रेट अगर डॉलर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, मैं रुपी सेल करके डॉलर बाई करूंगा ताकि डॉलर में इंटरेस्ट रेट ज्यादा लूं, डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी. जिस करेंसी की एक्सचेंज, जिस करेंसी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी. जी, then the first question is also known as a stimulus question. Time management is crucial. Lot of reading, so allocate 10 to 15 minutes for reading और फिर उसको आप क्वेश्चन को आंसर करें. और मैं अक्सर ये टिप देता हूं कि हर क्वेश्चन के आगे लिख लें कि आपने कौन सा रेलिवेंट एरिया देखना है, या पूरे डाटा में आप रेलिवेंट कर लें कि ये क्वेश्चन 1 ए मैंने यहाँ से आंसर करना है, 1 बी का आंसर यहाँ से लेना है, 1 सी का आंसर यहाँ से लेना है. ये ना हो कि क्वेश्चन पूछ रहा है टेबल 1.1 और आप टेबल 1.2 को देख के आंसर कर रहे हैं. जी, तो 90 सेकंड पर मार्क. मैं एक रफली 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आगे में 30 to 35 मिनट है. 45 मिनट में से आपने 10 से 15 मिनट लगा दिए पेपर पढ़ने के लिए, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 3 नंबर लगते, 3 मिनट. 6 नंबर का क्वेश्चन है 9 मिनट. डायरेक्ट क्वेश्चन में पार्ट ए बहुत आसान होता है, डेफिनेशन होती है, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, और जो डी और पी पार्ट होते हैं वो डिस्कस के बारे में होते हैं. और पहले बता दिया कि डिस्कस के क्वेश्चन में आखिरी 2 फिक्रे नहीं लिखने, आखिरी पैराग्राफ लिखना है 2 फिक्रों का, जिसमें आपने लिखना है देयरफॉर आई कंक्लूड, क्लियर कंक्लूजन दे. ठीक है. और जैसे जैसे डायरेक्ट फॉर्म में आप ए पार्ट से ई पार्ट की तरफ आते हैं,
डिफिकल्टी का लेवल बढ़ जाता है। डाटा कम से कम 2 दफा पढ़ें, एक डाटा पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा डाटा पढ़ें और हर डाटा के अंदर रेलिवेंट एरिया को आइडेंटिफाई करें जो उस क्वेश्चन के लिए जरूरी है या रेलिवेंट है। तो अब ये मैं आपको पहले बता चुका कि आपको पूछते हैं कि ये टेबल में जो डाटा दिया हुआ है वो एविडेंस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप उस क्वेश्चन के अंदर आप जरूर उस रेलिवेंट डाटा को कोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये आप साइड पढ़ लीजिएगा 109 जी। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें इज द एविडेंस गिवन इनफ फॉर यू टू डिटरमिन, तो आप बता सकते हैं कि नहीं वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का करंट अकाउंट दिया हुआ है और आपसे पूछा इज द एविडेंस अवेलेबल इनफ, तो आप बताएं नहीं हमें करंट अकाउंट के अलावा कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, हमें इसकी जीडीपी की फिगर भी चाहिए, हमें इन्फ्लेशन रेट की फिगर भी चाहिए, तो नीड अदर। तो आप ऐसी बातें भी कह सकते हैं जो कि डाटा में नहीं दी जी। तो कोशिश करें कि जो डाटा में इंफॉर्मेशन है उसी को एडिट ना लिखें, हाँ अगर देना है तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें कि ये मैं डाटा में से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप अपना आंसर लंबा कर रहे हैं डाटा में से चीजें लिख के। अच्छा नंबर परसेंटेज और एब्सोल्यूट नंबर ये फर्क है। अगर परसेंटेज चेंज 4 से 3% हुई है, नंबर अभी भी इंक्रीज हुआ है। अगर इन्फ्लेशन 4% थी अब 2% हो गई है, प्राइसेस दोनों सालों में इंक्रीज की, पहले 4% पे अगले साल 2% पे। हाँ अगर प्राइस पहले 4 थी अब 2 हो गई है तो प्राइस कम हुई। तो प्लीज अवॉइड दिस कंफ्यूजन, परसेंटेज चेंजेस और नंबर की चेंज को कंफ्यूज नहीं करना। अगर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 104 और अगले साल का है 102 तो आप बताएंगे प्राइस लेवल वेंट डाउन। लेकिन अगर दिया हुआ है इन्फ्लेशन रेट 4% अगले साल 2% तो आप कहेंगे प्राइस लेवल वेंट अप बट एट ए फॉलिंग रेट। इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 के लिए। तो वी हेडिंग टुवर्ड द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन फॉर पेपर 2 जी। ये पीएडी के बारे में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड नंबर 113 पे मैंने दी हुई है, ये अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहां से दोबारा भी देख सकते हैं इसको। और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लाइड नंबर 114 का सबसे आखिरी वाला बुलेट पॉइंट, लास्ट बुलेट पॉइंट ऑन स्लाइड नंबर 114, डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, यूजफुलनेस ऑफ इलास्टिक डिमांड फॉर गवर्नमेंट, जो मैंने आपको थोड़ी सी आंसर आउटलाइन दी। और फर्म के लिए आ जाए तो वो रेवेन्यू का जो क्वेश्चन है, प्राइसिंग डिसीजन में रेवेन्यू के लिए और आउटपुट डिसीजन में हेल्प करता है। पीएफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की पी इसका क्या फर्क है, गवर्नमेंट और फर्म्स कैसे रेट कर। सैंपल आंसर अवेलेबल है, मेरी बुक्स अवेलेबल है, सैंपल आंसर की बुकलेट भी है, तो ये सैंपल आंसर मेरे अवेलेबल है टॉपिक की। मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई शिफ्ट, तो 4 बातें करनी है, डिमांड कब शिफ्ट होगा या सप्लाई कब शिफ्ट होगा, डिमांड कब शिफ्ट होगा या सप्लाई कब शिफ्ट होगा, एक्सेस डिमांड होगी या एक्सेस सप्लाई होगी, प्राइस बढ़ेगी या क्वांटिटी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। मनी, व्हाट इज मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमी, 2 चीजें, मनी 2 चीजें लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिमरन बताओ दूसरी बात क्या है, मीडियम एक्सचेंज जी, नो, it is used to settle debt. Unless you write this line, you will not get 2 marks. Money is a medium of exchange and a tool to settle debt. For example, currency notes, bank deposits, and online payments. 4 out of 4. And if you miss online payments, or you miss tool to settle debts, maximum 2 out of 4. What are the functions of money? I hope you're aware. And how does inflation affect functions of money? Now this is my next question. AD components, CIGXN. Impact of change in areas and prices, output and employment. तो अब जरा देखिए, मिसाल के तौर पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करे एजुकेशन ट्रेनिंग पे, एडी राइट पर शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगी,
डिपेंड करता है प्राइस लेवल बढ़ेगा या आउटपुट। एएस की पोजीशन क्या है, एएस हॉरिजॉन्टल है तो प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगी। एएस वर्टिकल है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगी। और फिर क्या होगा, एजुकेशन ट्रेनिंग से लेबर स्किल हो जाएगी, प्रोडक्टिव हो जाएगी, यूनिट लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, एएस राइट पर शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल कम होगा, आउटपुट बढ़ेगी। तो क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट, एडी के बढ़ने से भी आउटपुट बढ़ेगी, एएस के बढ़ने से भी आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन एडी के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, एएस के बढ़ने से प्राइस लेवल कम होगा, प्राइस लेवल पे इंपैक्ट अनसर्टेन है। ये 12 नंबर का आंसर बताया, दोबारा सुन लीजिएगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन कर लेगा हूं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के से एडीएस पे, इनकम पे, एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी, रिवॉर्ड फॉर सेविंग कम होगी, लोग सेविंग कम करेंगे, बोरिंग ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, स्पेशली ऑफ नॉन एसेंशियल एक्सपेंसिव आइटम। फी बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, आय बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, करेंसी की डिमांड कम होने से फाइनेंशियल इनफ्लो कम हो जाएंगे, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, तो सी भी बढ़ जाएगा, आय भी बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी, एडी बढ़ जाएगा। एडी राइट पर शिफ्ट होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा अगर एएस वर्टिकल है, आउटपुट बढ़ेगी अगर एएस हॉरिजॉन्टल है। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा, करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, करेंसी डेप्रिशिएट करने से इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होने से इंपोर्ट कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन हो जाएगी, एएस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या, इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग रन में प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, एएस राइट पर शिफ्ट होगा। तो ये कंक्लूजन आप तीनों का कंबाइंड इफेक्ट बता दें कि एडी के अपवर्ड शिफ्ट होने से क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन एएस के बी अपवर्ड शिफ्ट होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, आउटपुट पे इफेक्ट अनसर्टन। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट की कमी प्रोडक्ट की पोटेंशियल बढ़ा दे, लॉन्ग रन में एएस राइट पर शिफ्ट हो जाए, तो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। अगेन 12 नंबर का आंसर मैंने 1 मिनट में करवाया है, ऑफकोर्स बहुत तेजी से कराया है, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको ये दोबारा सुनना पड़ेगा क्योंकि हम 2 घंटे के अंदर पूरे का पूरा कोर्स नहीं करते। लेकिन आपको मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको किस तरह दोनों साइड आप आर्गूमेंट लेंगे। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, एडी राइट पर शिफ्ट होगा, एएस भी राइट पर शिफ्ट होगा क्योंकि प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। एडी के राइट पर शिफ्ट होने से प्राइस लेवल बढ़ेगा, एएस के राइट पर शिफ्ट होने से प्राइस लेवल कम होगा, इंपैक्ट ऑन प्राइस लेवल अनसर्टेन है, डिपेंड करता है कि एडी में शिफ्ट ज्यादा आई या एएस में ज्यादा आई। हाँ, दोनों के राइट पर शिफ्ट होने से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जी, एक्सचेंज रेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस टॉपिक। फ्लेक्सिबल वर्सेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, डेफिनेशन इनके दोनों के बेनिफिट ड्रॉबैक और बेनिफिट एंड ड्रॉबैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन करेंसी। हमने ये क्वेश्चन सैंपल पे किया भी है, एप्रिसिएशन और करेंसी। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, टूल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ फिस्कल, मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन, मैं पिछले 2 साल से केस में डाल रहा हूं, दूसरे वेरिएंट में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, पर इस साल इसके अंदर आने का बहुत चांस वेरिएंट 2 में। Role of these policies in achieving objectives such as lowering unemployment, deflation, economic growth, controlling inflation, quality of factor production। जी, करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल सेक्शन सर्विसेज, नेट इनकम, करंट ट्रांसफर। चारों की डेफिनेशन, चारों की एग्जांपल पता होनी चाहिए। करंट अकाउंट का डेफिसिट क्यों होता है, क्या पॉलिसी है इसको करेक्ट करने की। एक्सचेंज रेट और करंट अकाउंट से 99% में कॉन्फिडेंट हूं इस साल जून 2022 में क्वेश्चन आएगा। मैं पिछले साल की मेरी प्रेजेंटेशन पढ़ी है, उससे पिछले साल की पढ़ी है। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो पिछले साल की प्रेजेंटेशन में किया, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में आया, उससे पिछले साल भी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था प्रेजेंटेशन में वो आया। इस साल का मेरा जो गेस है क्वेश्चन का वो ये करंट अकाउंट एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन इस साल जो है वो जरूर आएगा। 12 क्वेश्चन की लिस्ट है अवेलेबल आपको, ये हमारा कमेंट सेक्शन में आप ढूंढ लेंगे 12 क्वेश्चन की लिस्ट। ये जून 21 का ग्रेड थ्रेशोल्ड है, ये आपका पेपर 2 का ग्रेड है। जून 22 में 22 आउट ऑफ 40 पे ए ग्रेड है, 19 पे बी, 16 पे सी,
13 पे, अभी नवंबर 21 पे आया। तो अराउंड 55% मार्क्स के ऊपर ए ग्रेड है। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने गलत लिखा 3 पेज लिखे 0 नंबर में, तो देख लीजिए 3 नंबरों के फर्क से, तो डायग्राम भी गलत कर दिया तो आपने ए की ब्लेसिंग ले ली। ये दोबारा से स्लाइड रिपीट हो गई। अच्छा जी, तो ये हमारा एक सेमिनार हो रहा है 18 जून का सब्जेक्ट सेक्शन पे, कि बच्चों को ओ लेवल में, ए लेवल में क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, उनके क्या आईबी का, ए लेवल एफएससी का क्या डिफरेंस है, मेडिकल में जाना है एफएससी पढ़नी है, आईबी का फॉर्मूला क्या है। तो आप तो चलो अब ए लेवल में हैं, पर आपके कोई यंग सिबलिंग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, काइंडली डू लेट देम नो। और ये सेमिनार हो रहा है 18 जून 2022 को 6:30 PM एट कम्युनिटी सेंटर डिफेंस क्लब, जे ब्लॉक, फेज 1, DHA लाहौर। और इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि मैं अंदाजा हो कि आप लोग आ रहे हैं। तो उसकी भी जो एक हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, आप रजिस्टर कर लेंगे। तो ये 18 जून को इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम्स हमारा सेमिनार है डिफेंस में। आप जरा क्वेश्चन पूछने हैं जी, और जो बच्चे AS कर रहे हैं सिर्फ, अब वो जा सकते हैं। आप सिर्फ A2 के लिए बच्चों की, जिनका पेपर 4 है, तो जी, तो एक क्वेश्चन मुझे आया है, बिल, अच्छा सुन लीजिए क्वेश्चन, बिल डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी cause the demand of currency to fall and supply to rise. Would you like to answer this question? Will depreciation of currency cause the demand of currency to fall and supply to rise? No. It will bring the movement along the curve. Depreciation means change in the price of currency. Depreciation means fall in exchange rate. It will bring a movement along demand and supply curve. It will not cause a shift. It will not cause a shift in the demand supply curve. Depreciation of currency does not cause a shift in demand or supply of currency. However, depreciation of currency causes a shift, may cause a shift in AD, and may cause a shift in AF. Depreciation of currency makes export cheaper. Assuming high PEV, export will rise, AD will rise, AD will shift to the right. Depreciation of currency will make imports expensive, cost of imports will rise, cost of production will rise, AS will shift to the left. So depreciation of currency does not cause a change in demand or supply. It causes a change in demand supply, but that is shown through a movement along the demand supply curve. It does not show, it is not shown by the shift. So there is another question. Please explain current account deficit and its reasons and effects. So let me take a couple of minutes because it's an important topic. So first of all, what is the current account? The current account records the inflows and outflows for 4 reasons. 4 reasons. There are 4 sections of current account. 1, balance of trade, goods only, which we can see, which are tangible, which are recorded on the ports, airport, dry port, seaport. Goods, all types of goods, machinery, investment, capital goods, cars, consumer goods, consumer durable, jewelry, furniture, consumer non-durable, wheat, edibles, everything which we can see, इसकी export और import balance of trade में आएगी. One section of current account is balance of trade. तो अगर इसकी definition दें balance of trade की, तो balance of trade records the exports and imports of goods only. Example, machinery, equipment, cars, wheat. दूसरा section current account का, services, export and import of services only. Education, cargo, shipping, banking, insurance. Third, net incomes, sector incomes. आपका कोई सेक्टर प्रोडक्शन दूसरे मुल्क में काम कर रहा है, पैसे वहां कमा रहा है, यहां भेज रहा है, वो रिकॉर्ड होगा. बाहर का कोई बंदा जहां पे काम कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है. 4 तरह की इनकम है. वेजेस, पाकिस्तानी डॉक्टर अमेरिका में काम करके अपनी सैलरी पाकिस्तान भेज रहा है, करंट अकाउंट के इनकम सेक्शन में आएगी. टोयोटा पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाता है, उससे प्रॉफिट होता है, करंट अकाउंट में आएगी, इनकम सेक्शन में. डिविडेंड, आपने शेयर होल्डर लिए हुए किसी दूसरे मुल्क में, डिविडेंड मिला, करंट अकाउंट में आएगा. डिविडेंड, प्रॉफिट, सैलरी, इनकम. चौथा, ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर. ट्रांसफर वो जिसके अगेंस्ट कोई आउटपुट नहीं है, नो आउटपुट इज प्रोड्यूस अगेंस्ट इट. पेंशन, एज, पेंशन के बदले में काम नहीं कर रहे, रिटायरमेंट होगी अब. तो एक आदमी जो सऊदीया में डॉक्टर था, रिटायर होकर पाकिस्तान आ चुका है, वहां से पेंशन आ रही है, करंट ट्रांसफर में आएगी. काम करके सैलरी दे रहा है, इनकम में आएगी.
तो 4 सेक्शन करंट अकाउंट के, बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स ओनली, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर। डेफिसिट क्यों आता है? डेफिसिट आता है, मेन सेक्शन करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ ट्रेड है। डेफिसिट आता है एक वजह, हाई इन्फ्लेशन है। आपके यहाँ हाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हाई है, आपकी प्राइसेस ज्यादा हैं कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से। योर गुड्स लुक एक्सपेंसिव टू पीपल, पीपल डोंट बाय योर गुड्स एंड दे बाय देयर ओन गुड्स, योर एक्सपोर्ट फॉल एंड योर पीपल आल्सो बाय फॉरेन गुड्स बिकॉज दे लुक चीपर टू देम, योर इंपोर्ट साइज। दूसरी बात, आपके इंपोर्ट और रिपोर्ट थोड़े, आपके टैक्स बहुत कम है, योर इंपोर्टिंग इज वेरी इजी। तीसरी बात, आपके इनकम बढ़ रही है, आपके यहाँ लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, दे आर बाइंग मोर। अब पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है? प्लॉट देते हैं 10 लाख रुपए का, वो 80 लाख का हो जाता है 6 महीने के अंदर, साल के अंदर। नई गाड़ी लेते हैं, प्रोडक्शन कोई नहीं है, डिमांड है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट कोई नहीं, डेफिसिट। एग्रीकल्चर कंट्रीज का ज्यादा डेफिसिट होता है क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट लो है, वैल्यूड। तो टैरिफ लो होना, एक्सचेंज रेट का ओवर वैल्यूड होना, आपकी एक्सपोर्ट महंगी लग रही है लोगों को, एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है, या आपके इनकम ज्यादा होना, या आपकी प्रोडक्शन बेस का वीक होना, ये आपकी डेफिसिट की कॉमन है। तो मेरी ग्राफ कहाँ गई? ये आखिरी क्वेश्चन, मैं भी क्वेश्चन पूछ लूँ ना, मेरी ग्राफ कहाँ गई? एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट mutually beneficial exchange rate. Is it possible that we will have to calculate it in any paper 2 question? No, you may not have to calculate unless there is a question about comparative advantage, which I will recommend not to do that question. Normally वो क्वेश्चन का बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती। हाँ, म्यूचुअली एक्सचेंज रेट क्या करें? एक सिंपल टिप बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेट करें 2 कंट्रीज का इंडिविजुअल एक्सचेंज रेट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिसाल के तौर पर एक कंट्री का पीपीसी है, वो बता रहा है 30x और 30y, 30x और 30y, तो उनकी डोमेस्टिक रेशियो क्या है? 1, 30 to 30, 1। दूसरा बना रहा है 30x 20y, उसकी रेशियो क्या है? 30-20, 1, 1.5। तो 1.5 और 1 के दरमियान में म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। दोनों कंट्रीज का इंडिविजुअल रेशियो कैलकुलेट कर लें। इंडिविजुअल कैसे करेंगे? स्लोप ऑफ पीपीसी, इंडिविजुअल स्लोप कैलकुलेट कर लें दोनों कंट्रीज का, और उनके मिडिल का नंबर ले लें, जो भी उन दोनों के नंबरों के मिडिल में होगा, एग्जैक्ट मिडिल में ना भी हो, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। तो दिस कंक्लूड्स माय डिस्कशन ऑन पेपर 2. Students taking only paper 2 may leave now, but there is another question, but those who want to leave may leave. Whether we talk about x minus m and it's in negative, we'll use it called current account deficit or trade account deficit. X minus m is trade deficit, but usually trade deficit is the most important deficit of current account. So we often use trade deficit and current account as synonyms. However, please note that there could be a question कि ट्रेड डेफिसिट है पर करंट अकाउंट का सरप्लस है। देयर कुड बी क्वेश्चन, तो आप बताएंगे ट्रेड डेफिसिट है लेकिन बाकी 3 अकाउंट का सरप्लस ज्यादा है, आउटवे कर देता है, एक्सीड कर जाता है। द सरप्लस ऑफ इनकम, ट्रांसफर एंड सर्विसेज outweighs the deficit of current trade deficit, and that is why current account is showing a positive number even when trade deficit is in a negative number. Another important tip, डेफिसिट और सरप्लस का वर्ड यूज करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का वर्ड यूज नहीं करना। अगर आप डाटा लेके डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या हुआ, अभी ये क्वेश्चन था मुझे अब याद नहीं साल, तो उसमें बच्चों ने लिखा कि नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव हो गया, नंबर नहीं मिले, जिसने लिखा डेफिसिट सरप्लस हो गया उसका नंबर मिले। थैंक यू वेरी मच जी। तो वी आर एग्जैक्टली 4:30, दिस इज वंडरफुल, वी हैव बीन एबल टू फिनिश द कोर्स। So those can you kindly leave silently, please. So now we are going to do paper 4G. So candidates are expected to attempt 2 out of a choice of 6 essays, and both essays could be found the micro. Please silence, please silence, please silence. So I am just holding for a few seconds. So there are around 25 slides for paper 4. There are around 25 slides for paper 4. Candidates are expected to attempt 2 out of a choice of 6 essays. Both essays could be from the micro or macro. 2-part essay might be better. लेकिन आपने ऐसे वो चूज करना है जो आपको आता है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस स्लाइड में बताने, तकरीबन 32 स्लाइड रहती हैं, और आपकी पेशेंस का शुक्रिया, और थैंक यू फॉर द अटेंशन यू गिविंग मी।
आई होप यू फाइंड दिस डिस्कशन यूजफुल। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क, तो ये अच्छा एक क्वेश्चन है, इसी मैंने इसकी एग्जाम्पल आंसर तैयार किया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे दें। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इनकम में इंक्रीज है, नेशनल इनकम में इंक्रीज है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीज इन इनकम 0 मार्क्स, इंक्रीज इन नेशनल इनकम 1 out of 2, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज a correct definition of economic growth, 2 out of 2. So benefit or economic development is more comprehensive. Economic development का ताल्लुक है improvement in quality of life. Economic development तब होती है जब quality of life improve करे, जबकि economic growth तब होती है जब सिर्फ income increase करे। अगर आपके बाकी इंडिकेटर income के increase होने के साथ साथ, for example health improve हो, education improve हो, तो उसको हम कहेंगे economic development। Slide number 130, 21 slides to go. Economic growth, increase national income over a period of time. Economic development is an overall improvement in living standards, quality of life. PPC में rapid shift reflect करती है economic growth, जबकि literacy rate, life expectation, improvement law and order, कोई भी ऐसी चीज जो लोगों की quality of life improve करे, customer service बेहतर हो जाए दुकानों के ऊपर। आप जाएं शॉप के ऊपर, कोई मैंने कल मोबाइल फोन लिया था, ये अच्छा नहीं है, ओके जी अभी रिफंड कर देते हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी जी। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर पर कैपिटा इनकम provided national income rises faster than the population, higher affordability for better quality food, education, health, जो कि आपकी लेबर फोर्स को स्किल भी करेगी, प्रोडक्टिव भी करेगी और हेल्दी भी करेगी। बेटर हेल्थ केयर, बेटर हाउसिंग, बेटर क्वालिटी फूड, बेटर सैनिटेशन is likely to lead to higher life expectancy. वो मेरा एक दोस्त है, काफी माशाल्लाह वेल सेटल्ड है और अमीर आदमी है। उसका भाई एक दिन मुझे मिलने आ गया, तो वो मैंने अपने छोटे भाई को बताया कि ये मेरे फलान दोस्त के भाई हैं। तो वो मुझे कहता है ये तो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते नहीं है, ये तो बहुत डिफरेंट लगते हैं, हाउ आर दे ब्रदर्स। तो मैं कहा एक अमीर भाई है, एक भाई अमीर नहीं है। अमीर और गरीबों की शक्ल भी नहीं मिलती, क्योंकि गरीब आदमी के पास ना खाना है, ना बेहतर घर है, बीमार हुआ तो खुद ही बेचारा कोई टोटके करके ठीक होने की कोशिश कर रहा है। तो जो अमीर है उसको वो विटामिन भी खा रहा है, बेहतर डॉक्टर के पास भी जा रहा है, खाना भी अच्छा खा रहा है, अच्छे हाइजीनिक कंडीशन में रह रहा है, तो उसकी जो लाइफ क्वालिटी है और उसकी जो वेल बीइंग है वो बहुत बेहतर है। तो यही ताल्लुक उन मुल्कों का है जहाँ की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो जब कोरोना आया तो लोगों की डेथ होगी बहुत इटली में और स्पेन में, तो वो किसी ने कहा जी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में चूंकि एवरेज एज थोड़ी है इसलिए पाकिस्तान में लोग कम मरे। तो मैंने उनको कहा कि हम पहले ही मार देते हैं लोगों को, हमने कोरोना का वेट ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ ना एवरेज एज कम होना का कारण तो नहीं है। एवरेज एज क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत चीजें अच्छी नहीं, और इसकी वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। ज्यादा टैक्स रेवेन्यू क्यों मिलेगा? इनकम का मतलब ज्यादा इनकम मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों की सैलरी ज्यादा, लोगों की सैलरी ज्यादा, ज्यादा इनकम टैक्स। ज्यादा इनकम ग्रोथ का मतलब बिजनेस के प्रॉफिट ज्यादा, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा। ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा स्पेंडिंग ज्यादा और लोगों को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू ज्यादा। जो स्पेंडिंग करने वाले लोग ज्यादा तो गवर्नमेंट को मिलने वाला इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा। तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा जी। तो ये बातें आगे लिखी हुई मैंने। तो हायर इनकम लीड्स टू ग्रेटर स्पेंडिंग एंड हैज हायर इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मोर प्रॉफिट फॉर बिजनेसेस व्हिच मींस मोर कॉर्पोरेट टैक्सेस। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में और सोशल वेलफेयर पेमेंट में कम हो जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो गवर्नमेंट को कम स्पेंड करना पड़ता है लोगों की वेलफेयर के लिए। और जब टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हो गया और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कम हो गए तो फिस्कल पोजीशन बेहतर हो जाती है। गवर्नमेंट के पास ज्यादा बेहतर पोजीशन में गवर्नमेंट आती है कि वो ज्यादा लोगों की वेलफेयर पे स्पेंड कर सके और अपने लोन रीपे कर सके, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। इसमें फिस्कल पोजीशन लिखा है, अगर मैं इसी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखूं तो मैं लिखूंगा फिस्कल स्पेस इंप्रूव होगी। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है क्योंकि फिस्कल स्पेस कंस्ट्रेंड हो गई है। फ्यूल के ऊपर सब्सिडी देने से हर महीने 150 बिलियन रुपए खर्चना पड़ रहा है गवर्नमेंट को फ्यूल के ऊपर। तो गवर्नमेंट के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं रही कि वो लोगों की रिलीफ के लिए, लोगों की हेल्प के लिए पैसे स्पेंड कर सके जी। तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ के ड्रॉबैक है, जब इनकम ज्यादा होगी
लोग ज्यादा बाइंग करेंगे, एडी बढ़ जाएगा, इससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, इससे एनवायरमेंट डैमेज हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग विलेजेस से बेटर प्रॉस्पेक्ट के लिए शिफ्ट होंगे सिटीज में, और वहां रोड कंजेशन होगी और वहां पे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर आएगा। इनकम इनइक्वालिटीज राइज कर सकती हैं, रिच पीपल में बिकम इवन मोर रिच, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो वो लोग जो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो ज्यादा वेल एंडाउड होते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से इंपोर्ट भी बढ़ती हैं। अब देखिए पिछले साल पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस साल का, इस वक्त तक 9 मंथ हुए हैं, आज रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की, तो इस महीने का डेफिसिट शामिल कर लें तो $13 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इनकर हो चुका है 9 मंथ के अंदर, जबकि पिछले साल ये तकरीबन $1 या $2 बिलियन का डेफिसिट था। इस साल का डेफिसिट क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस साल की इनकम ग्रोथ ज्यादा है। इनकम ग्रोथ हुई, इनकम ज्यादा लोगों के पास आई, लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट की और गाड़ियों की इंपोर्ट और दूसरी लग्जरीज इंपोर्ट हुई, ज्यादा बिजनेस चले, ऑयल ज्यादा इंपोर्ट हुआ, तो आपका इंपोर्ट बिल $90 बिलियन के करीब जाने जा रहा है एनुअल, जिसकी वजह से आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड $50-55 बिलियन। होपफुली कम हो जाएगा जरा, इससे मैं जो नंबर बता रहा हूँ वो सिर्फ 40-45 पे आ जाए, 45-47 पे आ जाए ट्रेड डेफिसिट, ताकि क्योंकि पाकिस्तान का मैं सिंपल फिगर आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट ऑफ दिस ईयर अराउंड $31 बिलियन, expected import of this year is around $80 billion. Deficit is around 49, trade deficit is around $49-50 billion. Remittance $32-33 billion. Current account deficit around $17-18 billion. तो आपका इंपोर्ट बढ़ेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल हो, इसके लिए जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल ग्रोथ कब होती है? सस्टेनेबल ग्रोथ होती है जो कि दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को सैक्रिफाइस ना करे। ग्रोथ हो, ये ना हो इन्फ्लेशन होगी, ग्रोथ हो ये ना हो बैलेंस पेमेंट डिस्टर्ब हो गया, ग्रोथ हो ये ना हो इनकम इनइक्वालिटी होगी, ग्रोथ हो ये ना हो पोल्यूशन और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगी। तो ग्रोथ विदाउट कंप्रोमाइजिंग अदर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। सस्टेनेबल ग्रोथ रिक्वायर करती है कि इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाए, रीजनल इनइक्वालिटी कम हो जाए और इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी कम हो जाए। ये ना हो कि आज की जनरेशन फंड करे, आज की जनरेशन सारे रिसोर्सेज यूज कर ले और आगे आने वाली जनरेशन के पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ना ले। इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पेपर 4, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल तकरीबन क्वेश्चन आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? हाउ डज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज? जब मनी इनकम चेंज होगी तो इसमें आप बजट लाइन में पैरेलल शिफ्ट चेंज करेंगे। पैरेलल शिफ्ट होगी अगर मनी इनकम चेंज होगी, और अगर इनकम बढ़ने से आप बताएंगे नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर की कम होगी, और ऑल गुड्स कैन बी नॉर्मल बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी इंफीरियर एट द सेम टाइम। इसका सैंपल आंसर मैंने दिया हुआ है, एक चार्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं कि राइट पर शिफ्ट हुआ जब बजट लाइन, तो उससे दोनों गुड्स की डिमांड भी बढ़ सकती है, एक की ज्यादा एक की कम भी हो सकती है, पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि दोनों की कम हो जाए। डिमांड और इंफीरियर गुड्स का फर्क इनकम चेंज के साथ। स्लाइड नंबर 140, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चेंज होने का इंपैक्ट प्राइस के चेंज होने से। प्राइस अगर चेंज हो तो आपने पिवटल शिफ्ट शो करनी है, मनी इनकम चेंज हो पैरेलल शिफ्ट बजट लाइन में। इसके सैंपल आंसर जरूर देख लीजिए मेरे, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम्स की। प्राइस इफेक्ट की डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और रियल इनकम इफेक्ट में ये एक ही क्वेश्चन है, बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, और वो ये कि प्राइस की चेंज का इंपैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या है, डिमांड कर्व और बजट लाइन में क्या ताल्लुक है। गिफन इंफीरियर होती है पर इंफीरियर गिफन जरूरी नहीं कि हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर प्राइस बढ़ने से क्या, तो प्राइस इंक्रीज होने का इंपैक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वो भी बढ़े और प्राइस डिक्रीज होने का इंपैक्ट भी बढ़े। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स क्यों होते हैं, कॉन्वेक्स क्यों होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होते, इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ये सारे क्वेश्चन एक बुकलेट में अवेलेबल हैं। ये बुकलेट मैंने अपने स्कूल को दी हुई है, लेकिन ये अगर आपको चाहिए हो तो हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, तो वो आपको उसकी कॉपी दे देंगे, उस पर इन क्वेश्चन के सैंपल आंसर दिए गए जी। तो अब एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस कैंपेन, इससे क्या इंपैक्ट आएगा? इससे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप चेंज होगा। प्राइसेस के चेंज होने से दर से 3 चेंजेस पूछ रहा है एग्जामिनर, 3 चेंजेस। मनी इनकम से पैरेलल शिफ्ट, दूसरा प्राइस चेंज से पिवटल शिफ्ट, इंडर टैक्स से प्राइस
बढ़ेगी, पिवटल शिफ्ट, सब्सिडी पिवटल शिफ्ट। और अगर पूछे अवेयरनेस कैंपेन एडवर्टीजमेंट, उससे इन डिफरेंस कर्व का स्लोप चेंज होगा, बजट लाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होगी, अगर गुड एक्स की हुई है तो मार्जिनलिटी ऑफ एक्स बढ़ जाएगी, इन डिफरेंस कर्व ज्यादा स्टीप हो जाएगा। और अगर वाई की एडवर्टीजमेंट ज्यादा होगी, वाई के बारे में लोगों की फेवर हो जाएगी, तो फिर मार्जिनलिटी ऑफ वाई बढ़ जाएगी और इन डिफरेंस कर्व फ्लैट हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, एफिशिएंसी क्या है, मार्केट फेलियर के टाइप्स क्या हैं। 4 टाइप्स है मार्केट फेलियर की, 2 एएस की हैं और 2 ए2 की। तो 2 एएस में जो हैं वो है मेरिट, डीमेरिट गुड और पब्लिक गुड, और 2 जो ए2 में हैं वो है एक्सटर्नलिटीज और मोनोपोली। तो एक्सटर्नलिटीज और मोनोपोली में से किसी एक पे आपको क्वेश्चन आने जा रहा है। माई टेस्ट पेपर सेज कि एक्सटर्नलिटीज और मोनोपोली में से किसी एक पे क्वेश्चन होगा। Do free market make the most efficient use of resources? Yes, they do. No, they do not. दोनों साइड आपने कवर करनी। Yes, they do. कंपटीशन बहुत होता है, प्रॉफिट इंसेंटिव होता है, लोग बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। No, they do not. डीमेरिट गुड ओवर प्रोड्यूस करते हैं, मेरिट गुड अंडर प्रोड्यूस करते हैं, पब्लिक गुड प्रोड्यूस ही नहीं करते, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को इग्नोर करते हैं, मोनोपोली ओवर एक्सप्लॉइट करता है, अंडर प्रोड्यूस करता है और हाई प्राइस चार्ज करता है। Methods the government can use to improve efficiency: indirect taxes, subsidies, licensing, regulation, awareness campaigns, nice theory, minimum price, maximum price। जी, तो ये तरीके हैं गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के कि मार्केट वैल्यू को करेक्ट करे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, अवेयरनेस कैंपेन्स, नाइस थ्योरी, लाइसेंसिंग, नेशनलाइजेशन, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। क्या जी? नाइस थ्योरी भी करते हैं, बिल्कुल करता हूँ जरूर जी। पर कैपिटल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप, दिस इज थर्ड टॉपिक, दिस इज थर्ड टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज गूगल कीजिए आज जो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू मेजर लिविंग स्टैंडर्ड, वो 2 हैं। मेजर्ड इकोनॉमिक वेलफेयर, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पर कैपिटल इनकम की लिमिटेशंस क्या हैं? Does per capita income indicate living standards accurately or not? Yes or no? And what are the alternative methods? New and HDI, developing और developing countries के फीचर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे इस गेस्ट पेपर का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इफ यू हैव टू प्रिपेयर, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप तैयारी करके ये चले जाए पेपर 4 के लिए, आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको पेपर आता होगा। अगर आपको आता होगा इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस का इफेक्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के प्राइस इफेक्ट की डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग-अलग बताना, नॉर्मल गुड के लिए, इंफीरियर के लिए, नेसेसिटीज के लिए और गिवन के लिए, एक टॉपिक ये। दूसरा, 3 तरीके हैं, 4 मार्केट फेलियर के रीजन है, मोनोपोली, एक्सटर्नलिटीज, मेरिट, डीमेरिट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, और इनको करेक्ट करने के 4 तरीके हैं, टैक्सेस, सब्सिडीज और लाइसेंसिंग और सेल्फ प्रोविजन। नाइस थ्योरी में अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये 2, तीसरा पर कैपिटल इनकम मेजर करने का तरीका, ऑल्टरनेटिव मेजर म्यू और HDI, और चौथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको पेपर 4 हो जाएगा। माइनस डाटा रिस्पॉन्स, डाटा रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए कुछ बातें आपको और भी चाहिए। 2 करने हैं अपने आउट ऑफ 6। मैं 4 टॉपिक बताऊं जी। तो एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन जो मैंने पहले बता दिया वो ठीक है, वो काफी है। और ये टॉपिक भी करना चाहें, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, लीकेजेस और इंजेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अभी आपने किया है इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, दूसरे ऑब्जेक्टिव क्लैश में आगे, लेकिन जो क्लैश में नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का ऑब्जेक्टिव इकट्ठे अचीव हो सकता है। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव ट्रिगर कर देगा इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन डिस्टर्ब होगी, तो 2 ऑब्जेक्टिव जो इकट्ठे अचीव हो सकते हैं वो कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ और रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। जिनका कंफ्लिक्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, और इकोनॉमिक ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा करें, कम करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम करना और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा करना दोनों इकट्ठे पॉसिबल है। जी, डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन काफी आते हैं जी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल करने का तरीका, बेनिफिट ड्रॉबैक ग्रोथ के, और लार्ज साइज बिजनेसेस के बेनिफिट ड्रॉबैक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा रिस्पॉन्स क्वेश्चन के लिए। और डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के फीचर्स। जी, लेबर मार्केट इस साल मुनाफिनी, ट्रेड यूनियन, मिनिमम वेज, ये मेरा टॉपिक है जी। मैं समझता हूँ इससे क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। मिनिमम वेज का इंपैक्ट, और मैंने गेस्ट में 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं। 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ गेस्ट पेपर के लिए, 10 क्वेश्चन, उनमें से 10 में से 2 क्वेश्चन एमआरपी या वेज मार्केट से हैं जी। तो ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, और मैं नाइस थ्योरी एक्सप्लेन कर दूं जी। देखिए इंशाल्लाह बड़े अच्छे टाइम पे खत्म कर रहे हैं जी। नाइस थ्योरी ये होती है कि इंस्टेड ऑफ forcing people through the fear of financial penalties, nice theory aims to targets to change behavior of people through influencing them. For example, a fine of 500 rupees for not wearing the seat belt while driving the car is replaced by a pamphlet which is given to you by a child, a school-going child, that आई एम टेकिंग यू, जहाँ वो अपने अब्बू को कह रही है, वो बच्ची जहाँ वो लिख के कह रही है कि प्लीज फॉर माई सेक, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, डू वेयर ए सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव द कार, इट इज नेचुरली। तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर पीपल। तो ए साइन बोर्ड showing a child requesting his father not to smoke is a nice story, and a warning on the pack of cigarettes that smoking leads to a lung cancer, that is a nice story. Whereas a tax on cigarette is a financial penalty. So both should go hand in hand to be able to have an impact. So thank you very much for your time and patience. Best of luck for your exams. For my books which have sample answers, you can contact my office, and you will be given a copy of the ये कमेंट बॉक्सेस में मिल जाएंगे आप। दे विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, ऑन दिस विद दिस प्रेजेंटेशन। तो वो जो स्किल एक्सरसाइज की बुकलेट है, वो उसकी कम्प्लीमेंट्री कॉपी आपको अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।